أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. اجتماع جو ہوتے ہیں وہ خالی مجمع جمع کر کے چند باتیں سنا کر منع کر دینے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اجتماع ایک بہانہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے ضلع کی ایک ایک فرد تک پہنچنے کی شکل بنتی ہے۔ اجتماع سے پہلے ہی ان کے کانوں میں ایمان کی، اعمال کی، آخرت کی باتیں ڈالی جاتی ہے، پھر پورے مجمع کو اجتماع کے ماحول میں لانے کی محنت ہوتی ہے کہ ہمارا پورا مجمع اجتماع کے ماحول میں ماحول کے ذریعے سے ایک بات سمجھنا آسان ہو جاتی ہے اور ماحول میں لانے کی محنت ہوتی ہے۔ اور پھر دوسرا اجتماع میں ان کو مستقل 2 دن ٹھہرا کر ایمان کی، آخرت کی باتیں سنائی جاتی ہے، اور وہ بندہ طلب اور فکر کے ساتھ آیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی خیر یہاں سے لے کر جاتا ہے۔ اس کے لیے ماشاء اللہ ہماری مسجد کی جماعتیں محنت کرتی ہیں اور ایک فرد تک پہنچتی ہے۔ یہ جتنا مجمع آیا ہے وہ مسجد کی جماعتوں کی محنت کی برکت سے آیا ہے۔ ہمارے وہاں کوئی پامفلیٹ نہیں چھپتے کہ بھائی اجتماع ہے پہنچ جانا، مسجد میں بورڈ پر نہیں لکھا جاتا، مسجد کے بورڈوں پر نہیں لکھا جاتا، پامفلیٹ نہیں چھپتے، واٹس ایپ سوشل میڈیا پر نہیں چلایا جاتا، ہمارے وہاں گھر گھر گھوما جاتا ہے۔ یہ مسجد اور جماعت کی محنتوں کی برکت ہے جس کی وجہ سے اس میں ایک عمل یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہماری وہ بستی کے جہاں مسلمان آباد ہے اور ان تک سال بھر پہنچنا نہیں ہوتا، وہ مجمع تک بھی کیسے پہنچتا ہے اور اس مجمع کو بھی کیسے لایا جائے، اس کے لیے یہ دونوں کی جماعتیں ہیں کہ نہ مسلمان ہیں مگر وہاں اعمال کی کوئی شکلیں نہیں ہیں، نہ مسجد ہے نہ مدرسہ ہے، تو ان تک بھی پہنچنا۔ یہ مجمع جو ہوتا ہے وہ بہت ہی قابل رحم مجمع ہوتا ہے، بہت قابل رحم۔ وہ دیہاتوں میں رہتا ہے، ان کو جو شہر والوں کو ماحول ملتا ہے وہ ماحول بھی ان کو نہیں مل پاتا۔ سیکھنے سکھانے کی فضا جو شہر والوں کو ملی ہوئی ہوتی ہے وہ ان کو نہیں ملی ہوتی۔ دوسرا ان کے کانوں پر اللہ رسول کی آواز بھی نہیں پڑتی۔ دیکھو یہ دیہات جو ہوتے ہیں اس میں اذان نہیں ہوتی، ان کے بچوں کو اسلامی معاشرہ نظر نہیں آتا۔ جب یہ چیزیں نہیں ملتی تو یہاں کا مسئلہ بالکل بارڈر پر ہوتا ہے، تھوڑا سا دھکا لگے تو دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ بہت قابل رحم مجمع ہوتا ہے۔ دوسرا اکثر دیہات میں لوگوں میں غربت کا پرسی ہوتی ہے، روز محنت کر کے روز کھانے کا۔ اکثر دیہات کے لوگ صبح کمانے جاتے ہیں، شام کو لاتے ہیں، تو غریبی ہوتی ہے، اور غریبی چیز ایسی ہے کہ آدمی کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ ابھی ہم آگے کل ذریع سن کر آئے تو وہاں ایک علاقے کی تو دوسرا رتبہ اختیار رہے تھے، نام بدل دیے، کام بدل دیا۔ پہلے انہوں نے کل سنائی تھی کہ انہوں نے اس لیے بدل دیا تھا کہ گورنمنٹ راشن دیتی تھی تو فلاں فلاں کاسٹ کے لوگوں کو زیادہ دیں، تو راشن لینے کے لیے اس کاسٹ میں چلے گئے۔ جب آدمی کے پیٹ کے مسئلہ ہوتا ہے اور ایمان عمل دل میں اترا ہوا نہیں ہوتا تو یہ آدمی چند دیوالوں کے لیے، چند اٹکوں کے لیے اپنا دین چھوڑ دیتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ دوسرا ان میں جہالت بھی ہوتی ہے، اور حضرت صاحب کے انہوں نے فرمایا کہ جہالت بھی یہ بھی کفر کی صفت ہے۔ ایمان والا جاہل نہیں ہوتا، وہ اللہ کو
اللہ کا فضل ہے کہ ہماری جماعتیں اس ایسے مجمع میں جا کر رہی ہیں. اللہ اس نکلنے کو بے انتہا قبول فرمائے. ایک قسموں پرسوں کے پاس جا کر آئے ہیں. مولانا جیسا کے ملفوظات میں ہے کہ غریبوں کو اپنی محنت کا میدان بناؤ. غریبوں کو محنت کا میدان بنانے سے کیا ملے گا؟ کہ اللہ ملے گا. یہ حضرات ایسے قسموں پرس لوگوں میں محنت کرتا ہے. یہ بہت ہی قابل مبارک بعد لوگ ہیں. یہ حضرات ہم سے بہتر اور افضل لوگ ہیں. اللہ کے راستے میں چل کر آئیں گے. اللہ کے راستے میں چلنا وہ خود اپنی ذات سے ایک بڑی چیز ہے. کہ ان حضرات کا پیدل چلنا، مخصوص لوگوں میں جانا، ہاتھ والوں میں جانا، یہ اور بڑی بات ہے. ان کا یہ عمل نبیوں کی محنت سے قریب تر ہے. آپ دیکھیں گے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اکثر پیدل چلتے، لوگوں کے پاس پیدل گئے. ان کی محنت نبی کی محنت سے بہت زیادہ کرنے والی محنت. ہمارا یہ مجموعہ بہت ہی قابل مبارکباد مجموعہ حضرات کی اس محنت کو قبول فرمائے. ابھی یہ حضرات جو قرضداری سنائیں گے تو یہ قرضداری اس لیے ہم یہاں نہیں سنیں گے کہ ہم ان کا کوئی جائزہ لیں گے کہ تم کیا کرتے آئے ہو، یہ کیوں نہیں کیا، بلکہ قرضداری ہمارے نبی علیہ السلام کی مسجد کا ایک عمل ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگ اللہ کے راستے میں جاتے تھے تو ان کو کام سمجھا کر بھیجتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو ان سے قرضداری اور حالات معلوم کرتے تھے. کوئی بات اس علاقے کے سامنے آتی تو اس کو آگے سوچا جاتا تھا کب کیا کرنا ہے. ساتھیوں میں کوئی بات پیش آئی ہو تو اس کی رہبری ہو جاتی تھی. بہت مرتبہ ایسا ہو ساتھیوں نے اگر سنائی حضور نے فرمایا ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے. ایک جماعت آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرضداری لی. کیا گزری؟ جماعت نے کہا کہ آگ میں کود جاؤ. صحابہ کہنے لگے کہ ہم تو اس سے بچنے کے لیے تو مسلمان ہوئے تھے اور آپ ہم کو آگ میں کودنے کو کہتے ہو. یہ قرضداری حضور کو سنائی. اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا اچھا کہ آگ میں نہیں کودے، اگر کود جاتے تو ہمیشہ آگ میں رہتے. یہ قرضداری سے حضور نے رہبری فرمائی. ایک جماعت آئی، حضور نے پوچھا کیا گزری؟ جماعت نے سنایا کہ ہمارے ساتھی نے ایک ساتھی کو پکڑ لیا اور اس کو پچھاڑا تو وہ کلمہ پڑھنے لگا، مگر ہمارے ساتھی نے اس کو ختم کر دیا. تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کیوں ایسا کیا؟ وہ تو جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا تھا. تو فوراً فرمایا کہ کیا تم نے اس کے دل کو پھاڑ کر دیکھ لیا تھا؟ پھر فرمایا کہ اللہ میں اس خون سے بری ہوں. تو یہ رہبری ہوئی قرضداری کے ذریعے سے. ایسے کئی مرتبہ مختلف موقع ہوئے تو رہبریاں ہوتی. ایک جماعت لوٹی، پوچھا کیا گزری؟ کہ ہمارے فلاں ساتھی کا انتقال ہو گیا. تو کیسے انتقال ہو گیا؟ کہ جی اس کو غسل کی حاجت ہو گئی تھی، ٹھنڈی بہت زیادہ تھی. اس نے ہم کو مسئلہ پوچھا کہ غسل کی حاجت ہوئی ہے، اس کو زخم ہوا تھا جسم میں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جی غسل کی حاجت ہوئی ہے، غسل کرنا چاہیے. اس بیچارے نے غسل کیا، پانی زخم میں چلا گیا اور اس کو انتقال ہو گیا. یہ قرضداری سے پتہ چلا. تو حضور نے فرمایا ایسا نہیں کرتے. تو ایسے محمد جیسے وضو کا تیمم ہوتا ہے ایسے تیمم کرنے کا تھا. یہ قرضداری سے پتہ چلا. قرضداری سے کام کی میادی رہبری ہوتی ہے اور ساتھیوں کو بھی صحیح وقت مل جاتا ہے. ہم سنانے والے بھی اسی ذہن کے ساتھ، اور ہم سننے والے ایک رشک کی نگاہوں سے دیکھیں ان کو کہ یہ وہ خوش قسمت ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنت کو لے کر ایسے ٹھنڈی کے ماحول میں ان کے سوپرس مسلمانوں کے پاس گئے تھے. ہم نہیں جا سکے، ہم نہیں جا سکے. ہمیں اس کا قلق ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک موقع پر تشریح کی، ایک مجمع نہیں جا سکا. وہ تو اپنی مجبوری کی سے نہیں جا سکا تھا کہ ان کے پاس سواری نہیں تھی، ان کے پاس اسباب نہیں تھے. تو وہ روتے ہوئے واپس لوٹے.
आंसू बह रहे थे कि हम नहीं जा सके। हमें तो कोई मजबूरी भी नहीं थी, फिर भी हम नहीं गए। तो हमें तो दिल ज्यादा दुखना चाहिए कि कैसे मुबारक लोग हैं। अल्लाह के रास्ते में चलने वाले और घर में बैठने वाले दो बराबर नहीं हो सकते। ये हमसे अफजल लोग हैं, हमसे बेहतर लोग हैं। ये काम करके तो इनके काम को हम रश्क की निगाहों से देखें। और ऐसी तौफीक हम अपने अल्लाह से हम अल्लाह से अपने लिए भी मांगे। अल्लाह तो हमें भी ऐसी तौफीक दे। देंगे इंशाअल्लाह इसी दिन से अल्लाह हमको तौफीक दे। नसवाड़ी जोन की पहली जमात है। नसवाड़ी जोन में जो पहले राउंड की जमात चली उसमें फारूक हाजी कौन है भाई? हाजी कौन है? आप है फारूक? आप है? नसवाड़ी जोन में चले थे। आ जाओ। कर्जदारी कौन सुनाएगा? आपकी जमात में कर सुनाना किसका क्या हुआ? अमीर साहब का। उनका क्या नाम है? हारून भाई। फारूक लिखा है। आ जाओ, कोई भी आपकी जमात में से कोई आ जाओ। चलो, कौन आएगा? कौन है जमात के साथियों में? कौन कौन है? जल्दी से आ जाओ। क्या नाम है भाई तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? सुहेल। कहाँ के हो? प्रकट क्या? बलिया। भाई तुम्हारी जमात में कितने साथी थे? 8 साथी। आपकी जमात छोटा उदयपुर की थी या मखलूक? दूसरे छोटा उदयपुर के कितने साथी थे? छोटा उदयपुर के मतलब तीनों मस्जिद से। अच्छा, छोटा उदयपुर की ही जमात थी, तीनों मस्जिद। अच्छा, अब आप बात लगाओ। अब माइक छोड़ो, ऊपर करते हो तो ऊपर करो माइक। जो कर रहा हूँ कर लो, मगर एक बात कर लो। कुछ करना है? हो गया? चलो। अच्छा, तीनों मस्जिद के मखलूक कितने साथी थे? पूरा 8 साथी। उसमें 4 बजे वाले कितने थे? 2 साथी। 2 साथी। बाकी साथी सब थे या आपका जब लगा हुआ था? तो हाँ, ये साथी आपने हमारे वाले को भरपाई के लिए इस्तेमाल किया था। 10-12 आदमियों की जमात होनी चाहिए और उसमें 2 उलमा। आप तो 6 थे और 2 उलमा लिए थे। हमारी जरूरत ये थी कि हम ये चाहते हैं कि हमारे उलमा का वक्त साल जोनों में हम लगवाएं। और आपके जोन बहुत अच्छे हैं और आपके जो जोन की जमात काबिल रश्क हो, इसलिए हम तो स्पेशल आपके जोन में हमारे उलमा भेजते हैं। तो आप उस उलमा को भरपाई के लिए इस्तेमाल किया भाई। 10 होते और 2 उलमा होते या 12 होते और 2 उलमा होते। भरपाई के लिए इस्तेमाल किया। आपके दोनों में हम एक उम्मीद के साथ भेजते हैं कि 10-12 होंगे तो हमारे वाले होंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपको मेहनत के लिए कौन सा इलाका दिया गया था? उसके कितने दिहाड़ी थे? यहाँ से कितनी बस्तियों में आपको काम करने के लिए ड्यूटी दिया गया था? 25। 25 आपने काम कितनी जगह पर? 17 जगह पर। 17 जगह पर आपका कयाम किया, ठीक है? 17 जगह पर कयाम किया। इन 17 जगहों में से कितनी जगह होती जहाँ मस्जिद मदरसा था, ठहरने की जगह थी? एक जगह। कौन सी जगह? वहाँ मस्जिद है। आप वहाँ मस्जिद में ठहरे? तो अच्छा, मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे वो ये पूछ रहा हूँ कि जो मानूस हो, जहाँ आपको ठहरा रहते हो, मस्जिद हो या मदरसा हो, ऐसी इन 17 जगहों में से कितने? 17 जगह में 10 जगह ऐसी थी जहाँ इबादत खाना था या मस्जिद थी, आपके ठहरने का ठिकाना था। वो 10 जगह क्या क्या था? 10 जगह में 5
5 जगह पर 10 पर। ये जो 10 जगह हैं, ये इन हालत के बाद खाने बने हैं या पहले से वो जमातें साल भर आती जाती है? आती जाती है। इन रुख पर जमातें आती जाती हैं, साल भर 3 दिन की जमातें, ये जो 10 इबादत खाने हैं वहाँ जाती हैं? तो मतलब 2-3 ऐसी इबादत गाह है वहाँ आती जाती है। अच्छा, वहाँ बाकी पर नहीं आती जाती। अच्छा, ये 17 जगह पर आपने तैयार किया और काम कितनी जगह पर किया, कवर कितने देहात कवर किया आपने? अंदाजा मैं किसी को उस जमात से याद हो तो जरा रुकवा दे। 32 जगह पर। हाँ? 32 जगह। 32 जगह, 32 गांव। 32 गांव आपने कवर, माशाअल्लाह। रुकवा दे देना अगर किसी को, अल्लाह रिज़ा कर दे, बहुत अच्छी बात है। क्या कैसा रहा, थोड़ा सा कर सुना दे। इस दौर में आपने ईमान, कितने ईमान वालों से मुलाकात? 300 जैसे 300 459 आपने एक गाँव में काम किया, दूसरे 32 गाँव में कितना किया? 32 गाँव में मिला के 32 और जो 17 गाँव किए, ये सारे मिला के 459। इन 32 गाँव में और सब 17 गाँव में कितने ईमान वाले कुल थे? ईमान वाला की तादाद कितनी थी जी? आपको आदमी पता नहीं कितने थे, इसलिए कि 400 तो बहुत कम हो गए ना। 400 को 40 दिन पर डिवाइड करो तो रोज के 10 हुए, और 10 की जमात थी, 8 की तुम्हारी जमात थी, तो 24 तलाक में 10 आदमी मिलते थे आपको। मेरा ख्याल है कि शायद बात भूल हुई है। 17 ये गाँव, उसके साथ आपने 32 गाँव को कवर किया। कहीं एक मकान होगा, कहीं 2 मकान होगा, आज मतलब एक जो देहातों में होते हैं 4-4, 5-5 मर्द होते हैं, 2 भाई साथ में रहते हैं, बच्चे होते हैं, दामाद होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, तो शायद आधे मर्दों की ताकत गिनने में होती नहीं हुई। अभी हम दूसरे जोनों में जाकर आए तो कहीं 1500 मुलाकात, 1000 मुलाकात, कहीं तो एक जमात में 2000 मुलाकात सुनाई। इसलिए मैं पूछता हूँ कि 400 मुलाकात मतलब एवरेज रोज की 10 की, तो इतना कम तुमने काम किया हो ऐसा नहीं लग रहा मुझे। रोजाना कितनी मुलाकातें होती? पहले जोन में गए वाला को अक्सर ऐसा ही। अच्छा, कैसे हालात है वहाँ वालों के? बड़ी कहानी सुनाए, कौन सी बरादरी वहाँ रहती है, कहाँ के लोग, मुसलमान कहाँ के थे, वही मकामी थे या बाहर के आए हुए थे? मकामी। इन 17 जगहों पर अज़ान नमाज की 10 इबादत खाने में कंटिन्यू चल रही, और जो 7 जगह आप ठहरे वहाँ इबादत खाना नहीं है या मस्जिद थी और ठहरने की शक्ल नहीं बनी इसलिए टेंट में ठहरे? भाई शालों बड़े वाली दिन थोड़ा दो ताकि पता न चले कि पैंट है कि शर्ट है कि जब्बा है, बराबर है, ठीक है? लगता है अच्छा लगा तो भाई हमें खबर है देखता हूँ कर रहे कमावा ऊपर लगा अच्छा हमें सब अच्छा वो दूल्हा आता है तो उस दिन जब्बा ने टोपी पहन कर पता है आपको? अच्छा ये आज का दूल्हा है ना? अच्छा क्या हालत थे कैसा रहा मुलाकातों में जी? वो मकामी मुसलमान थे या बाहर के मुसलमान? मकामी मुसलमान उनसे मुलाकातें आपने की, उनको कलमा पता था, आपने देखा कलमा 2-3 जगह ऐसा था जहाँ नहीं आना था। आपने इस पूरे सफर में ऐसे कितने मुसलमानों को देखा कि जिनको कलमा सिखाना पड़ा? 5-6 बाकी सब माशाल्लाह चलो पहले हालात ही होते थे अक्सर जोनों में मुलाकातों में लोगों को कलमा भी नहीं याद होता था। अल्हम्दुलिल्लाह भारत की तसलसल से मेहनत की बरकत ये हुई कि अक्सर
कमी रह गई, उसकी कोई खास वजह? वो मैं जब जल्दी चले जाते थे जी जी। तो कपास से देते थे। हम्म, अब जब जाते थे तो वहाँ से बिल्कुल मिलता नहीं। रात हो जाती थी, मगरिब में आते थे। तो ये जिन देहातों में अपने 100 मिले, वहाँ भी ऐसा नहीं होता था? वहाँ गाँव मतलब दुकान वाले वगैरह थे वो पहले मुलाकात जो में अक्सर मुलाकातें हो गई। पहले राउंड जब गए थे ना हाँ, जब तो तो आप 2 मरतबा गए? नहीं एक इधर गए एक उधर गए, दो अलग अलग दिशा में। अच्छा अच्छा, पहले 20 दिन अलग तरफ गए होंगे, दूसरे 20 दिन अलग गए। हाँ तो मुलाकात देहात वालों की तो कोई करने की शक्ल बनानी पड़ेगी ना। किसानों की तो यही जिंदगी है, सुबह उठकर मजदूरी को जाना और शाम को आकर लेट आ जाते हैं। तो आप लोग उसमें 2-4 कितने मकानों के गाँव होते हैं? जहाँ मुकाम करते थे वो 5 घर से ज्यादा थे। हाँ, आप उनके खाने की दावत करते थे और उनको बताते थे कि खाना खाकर आप मजदूरी करके आए हैं तो खाना हम साथ में खा लेंगे, ऐसी कोई शक्ल बना देते। अगर मान लो हम ये उधर बताएंगे कि वो शाम को लेट आते थे, अब साल भर तो वहाँ जमात चलती नहीं है, उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की और हम जब गए और हमने भी नहीं की, तो बेईमान वालों की करेगा कौन? उसके लिए कोई बहाना तो करना पड़ेगा, कोई तदबीर करनी पड़ेगी मिलने के लिए। भाई एक जगह का कारोबारी सुना है, विराट कंपनी जो है ट्रायल की, वहाँ मुसलमानों का मजमा था, लेकिन वो कंपनी वाले दाखिल नहीं होने देते थे। तो उन्होंने कारोबारी सुनाई कि हमने देखा कि भाई माल ट्रक भर के सामान जाता है, वो कहाँ से सामान भरती है ट्रक वगैरह, तो हमने भी उस कंपनी का सामान भरवाया ट्रक से। और जब दरवाजे के करीब पहुंचे तो ड्राइवर को उतार दिया और जिम्मेदार साथी बैठ गया ड्राइविंग और कंडक्टर की जगह बिठा दिया तो अपने साथी को, और सामान लेकर खाली करने के लिए अंदर गए। अब सामान खाली हुआ और सब कुछ हुआ, इतने में हमने वहाँ के जो मजदूर थे उनसे इख्तिलाफ कर लिया और जब निकले तो हमने अपना फोन नंबर वगैरह उनसे दे दिया और समझ लिया कब छुट्टी होती है क्या होती है, और हमारा एड्रेस दे दिया कि हम फलां जगह पर अपने साथ में खाना खाएंगे। तो जब छुट्टी हुई तो सारे खाना 31 वहाँ गए और हमने उन सबसे मुलाकात की और सारा काम हो गया। तो तदबीर करनी पड़ती है। एक जगह ईंटों का एक भट्ठा है, तो वो उनकी जो भी मोनोपोली हो किसी को धक्के नहीं होने देते, मजदूरों के मकान भी उसी में बनाए भट्ठे में और सब उनके जरूरत हो यही। फिर वो साथियों ने सोचा कि इनका क्या जरूरत है, यूपी की है लोग, तो उन्होंने कहा कोई राशन लेने और राशन के अंदर उन्होंने रख दिया, अच्छे तो निकलते होंगे तो सिरा लगाया। हफ्ते में एक मरतबा अपनी कोई जरूरत की चीजें ले तो वहाँ खड़े हो गए और वो जब आए तो वहाँ मुलाकात की और कि हम आपके खाने की जियाफत करना चाहते हैं। तो वो खुश हो गए कि हमारी कोई ईमान वाला जियाफत करेगा और अपने सेठ से उन्होंने बात की कि हम पहचान वाला है, उनके वहाँ खाने की दावत है, उसके लिए उसने भेजा और इनका काम हो गया। और तदबीर करनी पड़ती है। अब मान लो कि आपने 10-12 कितने मकान कितने गाँव में 100% मुलाकात की, 15 गांव हमारे छूट गए कि जिसमें हमारी मुलाकात नहीं हुई। 100% जोन की जमात तो इसीलिए होती है कि जहाँ 5 मकान है उससे ज्यादा 5 से ज्यादा तो वहाँ ठहर जाए और ठहर कर वहाँ सुबह शाम मुलाकात का निजाम बना ले, इसीलिए वहाँ उनको ठहराते। आप लोग भी ऐसे कोई तकदीर कर लेते, बेचारे ईमान वालों से कब मिलेगा कब मिलेगा। चले अल्लाह का। जब आपकी इनसे मुलाकातें हुई तो हजरत क्या कह रहे थे आपसे, खुश हुए नाराज हुए, क्या कह रहे थे? या यूं कहा कि आप बहुत लेट गुज़िश्ता साल आए थे तो इस साल आए, क्या कहा उन्होंने बोला? जी आपने उनसे मुलाकात की तो उस मुलाकात में उन्होंने आपको क्या कहा, क्या तासुर उनका था? अच्छा, फिर बात सुनने के बाद कहते थे ठीक है आप अपने कैमरे में चले जाओ, हम अपने घर जाते हैं। यही तो मैं पूछता हूँ क्या कह रहे हैं? उनको आपकी मुलाकात अच्छी लगी और या उन्होंने कहा हम इंशाल्लाह इज्तिमा में आएंगे, या ये कहा हो कि आप हर महीने क्यों 3 दिन नहीं आते या क्यों इतना लेट आए, कोई ऐसी बात क्या कहा उन्होंने? अच्छा, वो आए इज्तिमा में आए? गाँव के साथी मिले। अच्छा, वो मिले तो आप उनसे मिले, आपने लाने की मदद नहीं की उनको?
نہیں ہم لوگ دعوت دے کر آئے تھے تو لانے کی محنت کر لیتے. ابھی ہم لوگ آگے کے دور میں تھے تو انہوں نے سنایا کہ ہم ان کو دعوت دے کر آئے تھے اور ہم نے ٹیمپو رکھ دیا وہاں اور سب کو ٹیمپو میں بھر کے لے کر آئے. تو ایک فیکٹری ایک جگہ پر سے خالی 50 لائے, ایسے پورے زون میں سے وہ لائے. آپ دعوت دے کر آئے تھے ان کو یاد آتے خاص ماحول میں وہ لوگ رہتے, ایمان عمل کے مذاکرے سنتے. یہ جو 7 جگہ تھی جہاں پر ٹینٹ ڈالا تھا وہاں مسجد مدرسہ نہیں تھا اس لیے ڈالا تھا یا مسجد میں جتنے داخلے ہونے دیے, کیا ہوا؟ ایک جگہ مسجد تھی ہاں اور داخل سیوا ٹینٹ. اچھا, تو اب حضرت نے ٹینٹ ڈالا وہاں کیسا رہا؟ جہاں پہ ٹینٹ لگے وہاں 100 فیصد بناتے وہی لوگ آپ کے پاس میں آتے تھے. 2-3 جگہ پر آئے, 3-4 جگہ پر آئے. ہاں 7 کا سے 4 جگہ پر تو بہت زیادہ ہو گئے ماشاء اللہ. تو کیا ہوا وہاں؟ آپ حضرت نے ٹینٹ لگایا مسجد کے باہر, تو پھر مسجد والے کوئی آئے تھے یا محلے والے آ کر کے آپ مسجد میں آ جاؤ یا یہاں کیوں ٹھہرے ہو؟ اس گاؤں میں ہوا تھا. کیا ہوا؟ مسجد میں ٹینٹ لگانے, مسجد میں گاؤں میں ہی کچھ نہیں کیا, ہاں تھوڑا آگے جا کے ٹینٹ لگایا. سر کی نماز کے ٹائم سے 2 ساتھی مسجد میں جا رہے ہیں, ہاں بولا تھا ہاں اور نماز وہاں پڑھ کے ملاقات کریں. گاؤں والوں نے منع کر مسجد میں نہیں جانا. 2 ساتھی آ کے بولا کہ بھائی یہاں سے بھی ٹینٹ لے کے آگے چلے جائے گا. ساتھی اور آئے گاؤں سے, انہوں نے بولا کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں, تم اپنے گھر لے گئے. راستہ کیا وہاں سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, واہ بھائی واہ. ہر مسجد میں ہر گاؤں میں 2 چلانے والی پارٹیاں ہوتی ہیں. آپ دیکھنا اپنی مانوس مسجد ہے نا, اپنے شہر کی مسجد ہے, دیکھیے آپ نے 50 سال پرانی 100 سال پرانی, وہاں بھی کچھ بوڑھے ہوتے ہیں کچھ جوان ہوتے ہیں, 4-5 آئٹم ایسی ہوتی ہے, اس کونے میں سے چلاتا ہے اس کو اس کونے میں سے چلاتا ہے. آپ نے دیکھا یہ ہر گاؤں میں ملیں گے اور ہر مسجد میں ایسے ہوتے ہیں نمونے. تو گاؤں میں بھی یہ زونوں میں بھی ایسے نمونے ہوتے ہیں, تو گھبرانے کا نہیں ہوتا. اپنے 50 سال پرانی مسجد ہے اس میں بھی ایسے نمونے ہیں تو وہاں نہیں ہوں گے. ان کا نہیں ہوتا ہے کہ چلانے کو بچوں کو بچے شور کر ان کے اوپر چیخنے کا, وہ 10 بچوں نے مل کر شور نہیں کیا, وہ اکیلا اتنا کرتا ہے. دیکھنا اندازہ کرنا, 10-20 بچوں نے شور نہیں کیا, اتنا ان کے روکنے کا وہ اکیلا کرتا ہے. تو ایسا ہر جگہ پر لوگ ہوتے ہیں, تو اس سے آدمی گھبرا جاتا ہے کہ یہ تو بہت ڈانٹتے ہیں, سوچتے ہیں دوسرے کو فوراً کہ 2 نے آ کر ایسا کہا, اچھا گاؤں ہے وہ 2 کو پنچایت تھی, وہ 2 آئے, پورا گاؤں نہیں آیا. پھر اسی کے بعد فوراً ایک آدمی نے آ کر ان کو واپس بلا لیا. ایسا ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں 7 مکہ مکرمہ میں تعاون کرنے والے بھی تھے اور روکنے والے بھی تھے. چند لوگوں نے روکنے کی محنت کی, باقی بہت بڑا مجمع وہ تھا جو اندر سے تعاون بھی کرتا تھا. تو یہ پہلے زمانے سے چل رہا ہے, مخالفت کرنے والے بھی ملیں گے اور ارے بولو بھائی ساتھ دینے والے بھی. تو ہم مخالفت کرنے والوں کو تو دیکھ لیتے ہیں, وہ ساتھ دینے والوں کو ہم بھول جاتے ہیں. تو دیکھو ماشاء اللہ اتنا اس نے ہمت کی کہ اپنے گھر لے گیا, دعوت بھی کی, قیام بھی کروایا. تو ایسا ہوتا ہے. تو نئی بستیوں میں ہمت رکھنے کی چیز ہوتی ہے. لقمان حکیم نے جب اپنے بیٹے کو بہت نصیحتیں کی, ایک نصیحت تبلیغ کی تھی, تو اس کے ساتھ کہ یہ کام ہمت کے کاموں میں سے ہے. یہ کام کس میں سے ہے بولو؟ ہمت کے. نبیوں کا کام جو ہوتا ہے وہ ہمت سے کرنے کا ہوتا ہے, اس لیے ہمت رکھ کے کرنے کا. چلو اللہ جزائے گا. یہ 7 جگہ پر اذان نماز نہیں تھی, آپ کے ذریعے سے اذان نماز شروع ہوئی, آپ نے اس کی کوشش کی تھی کہ اذان نماز شروع ہو جائے. کوشش کر رہے کہ آپ ماشاء اللہ وہاں ٹھہرے ہوں گے تو نماز آپ نے پڑھی ہوگی, پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ آپ پڑھی. تو آپ نے جب پڑھی تو ان کو بھی اپنے ساتھ نماز میں لے لیتے, وہاں اذان نماز شروع کرتے آپ. جو آپ نے کیا نا وہ بستی والوں کے لیے نہیں کروا دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. دیہات جو ہوتا ہے نا دیہات, وہاں اللہ کا نام گونجتا نہیں ہے اور دوسری اور آوازیں بہت ہوتی. تو ہمارے ایمان والے اپنے رسول کی بات سنتے نہیں. اگر وہ اذان شروع ہو گئی, اذان بہت بڑی طاقت ہے. آپ نے نہیں کہا کہ جب شیطان اذان سنتا ہے تو وہ بھاگتا ہے, اور ایسا بھاگتا
لگتا ہے کہ اس کی ہوا نکل جاتی ہے. اس کی اس کو اذان سے اذان اس کے طاقت کو کاٹ دیتی ہے. حضرت شیخ نے فضل سبقت میں نکل سکھایا اذان کی خبر کہ اگر بستیوں میں اذان ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے. حضرت نے لکھا کہ 2 آدمی بھی نماز پڑھے تو اذان کے ساتھ نماز پڑھے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس بستی میں اذان شروع ہو جائے, وہ حضرت نماز اجتماعی پڑھنے لگتے. نماز ہمارا ایسا عمل ہے جو امت کو جمع کر دیتا ہے. نماز میں سارا گاؤں جمع ہو جائے گا. ورنہ اکثر دیہاتوں میں آپ حالات دیکھیں گے تو دیہاتوں میں دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے انبن ہوتی ہے, ایک دوسرے سے جمع نہیں ہو پاتے. اسی لیے ہمارے بزرگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم دیہاتوں میں جائیں, جیسے آپ نے سنائی کہ ہم 2 جگہ پر کسی کے مکان پر ٹھہرے, کوشش کریں کہ مکانوں پر کسی کے نہیں ٹھہرے, کیونکہ اکثر دیہاتوں میں جو ہے نا آپس میں اندر ہوتی ہے. کسی کے مکان پر ٹھہرو گے تو جتنوں کو اس سے بنتی نہیں ہوگی کوئی بھی تم سے ملنے نہیں آئے گا, اور تم اسی جگہ پر ٹینٹ ڈال دو گے تو سب مل جائیں گے. کامن جگہ پر ٹھہرو گے, مسجد میں ٹھہرو گے تو سب مل جائیں گے. کسی کے پرائیویٹ گھر میں, کسی کی پرائیویٹ جگہوں پر ٹھہرو گے تو جتنوں کو وہاں بنتی نہیں ہوگی کوئی ملنے. اور اکثر کاموں میں ایسا ہوتا ہے, جو سگے بھائی ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں بنتی, بھائی بہن ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں بنتی. اللہ جزائے خیر. اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تو کامن جگہوں پر یا تو مسجد میں ٹھہرو یا اپنا ٹینٹ لگاؤ, کامن جگہ پر اپنے کرو. اور دوسری کوشش یہ کرو کہ 2 دن وہاں ٹھہرے ہیں تو اس ٹھہرنے کے درمیان میں 2 دن ٹھہرنے کے درمیان میں 100% مردوں سے ملنے کی ہماری کوشش ہو, اور وہاں اعمال کچھ زندہ ہو جائے, اس کی شکل بنا جائے. اور عمل میں سب سے بڑا عمل نماز کا عمل ہے. اگر وہ زندہ ہو گیا تو یہ اللہ سے قرب کا سب سے زیادہ آدمی اللہ کے قریب نماز کے ذریعے سے ہوتا ہے. کتابوں میں آتا ہے جب آپ سجدہ کرتا ہے کأنہ یسجد بین قدمی الرحمن, کہ گویا اس نے رحمان کے قدموں میں سر رکھ دیا, اللہ کے قریب بھی ہو جائے. اس لیے نماز کو ضرور شروع کروائیں, اس کی کوشش کریں. کہ بہت دکھ کی بات ہے, اس کی کوشش بھی نہیں کی. بات کہنا الگ ہے, کوشش کرنا الگ ہے. ہم لوگ بہت دنوں پہلے ایک دون کی کرداری سن رہے تھے, انہوں نے سنا ہے کہ ہم نے اتنی جگہ پر نماز شروع کی. ان سے پوچھا کیسے کرتے تھے, کہ کامن جگہ پر ہم قیام کرتے تھے. اس زمانے میں تو ٹینٹ بھی نہیں آئے تھے, تو ہم درخت کے نیچے نماز پڑھتے تھے. درخت کے نیچے نماز جب ہم پڑھتے تھے بستی والوں کو بھی اپنے ساتھ لے لیتے تھے, اور بستی والوں نے بھی ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی. پھر ہم کہتے تھے اب ہم نے یہاں پڑھی, اب تم یہاں پڑھتے رہنا. اب تم لوگ یہاں ایک پلاسٹک بچھا دیا اور 4 بندیاں گاڑ دی اور اس پر ایک پلاسٹک لگا دیا کہ تمہاری مسجد ہوگی. پھر یہ ہم نے ان کو اس طرح سے ٹھیے بنا دیے کامن جگہ پر. عام طور سے آدمی یہ سوچتا ہے مسجد کے لیے صحن بنانا پڑے گا, دیوالیں اٹھانی پڑے گی. ہمارے نبی علیہ السلام کی مسجد ایک لمبے زمانے تک فرش بھی نہیں تھا اور اس کا عرش بھی نہیں تھا, چھت بھی نہیں ہے, اس کا فرش بھی نہیں تھا, کنکر بچھا دیا, چھت بھی اس کی نہیں. تو مسجد کے لیے دیکھو ابھی ہم ٹینٹ میں نماز پڑھتے ہیں, یہاں کوئی فرش ہے ہمارا بنا ہوا, ماٹی پر پڑھتے ہیں اور دھاوا لگا ہوا ہے لیکن پڑھ رہا ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کی خصوصیت ہے کہ پوری دنیا کی مسجدوں کو, زمین کو اللہ نے ان کے لیے مسجد بنا دیا. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, یہ بڑی بات ہے. اس لیے آئندہ اس کا خیال کریں کہ کامن جگہ پر ہم کو پلاسٹک بچھا دیں گے, تمہاری مسجد ہو گئی, نماز شروع کرو گے. اس کا خیال چلے, اللہ خیر کرو. کتنا پیدل چلے؟ 148 کلو میٹر. زیادہ سے زیادہ کتنا چلے تھے؟ 15 ماشاء اللہ. کب نکلے تھے؟ فجر کی نماز شروع کر کے فوراً نکل. کب پہنچے تھے؟ 11:30 بہت جلدی پہنچ گئے بھائی, ماشاء اللہ. پیدل چلتے ہوئے کچھ چیزیں سیکھی آپ نے, کچھ دعائیں سیکھی ہو, کچھ آیتیں سیکھی ہو, کچھ چیزیں سیکھی؟ جی کیا سیکھ رہے؟ ہاں جماعت, اب تو آپ کی کرداری سنا رہے, جماعت کو سنا رہے. ہاں جماعت نے کیا سیکھا؟ دعائیں وغیرہ ہم نے بھی سیکھا. آپ نے کیا سیکھا؟ آپ نے کیا سیکھا؟ کتنے سو؟ 40 دن میں 4 سورتیں سیکھی بس. کیوں ایسا کیا؟ ارے بھائی ایک آدمی روزانہ ایک آیت یاد کرتا ہے, کتنی آیت؟ اللہ بولو بھائی, تو 40 دن میں کتنی ہوتی؟ 40 آیت. اچھا, روز ایک آیت یاد کرنا آسان ہے مشکل ہے؟ خالی ایک ہی آیت
एक दुआ सीखता रोज तो 40 दिन में, अरे बोलो भाई, एक सुन्नत सीखता तो 40 दिन में 40 सीखी। ऐसा ख्याल करोगे इसका, रोज एक कम से कम सीखो, ठीक है। आप जहाँ गए वहाँ मुस्तरद में प्रोग्राम किए थे तो हो जाए, बाकी जगह न करने की वजह कोई, आप हर जगह प्रोग्राम कर लेते हैं। बात करते थे पता क्या मना करते थे तो फिर उस मौके पर आप लोग जब घरों में मिलने जाते थे उसमें 10 जगह तो आपकी मानूस थी, तो वहां तो कौन मना करेगा, वो तो मकसूद से आपके रहे के इबादत खाने भी थे, अपने मकान थे, 7 जगह पर आपके लिए थोड़ी सी गैर मानूस जगह भी, 10 जगह तो मानूस थी, तो वहां मसला में बात कर ले। मसूरत का ध्यान बनना जरूरी है। अगर मसूरत का ध्यान बन जाता है ना तो उसका ताउन हमें मिलता है। क्या होता है, हम अपने फिक्रों में अपनी औरतों को शरीक करने की भरपूर कोशिश करें। अगर उस घर के मर्दों ने फिक्र ले ली, लेकिन अगर मस्तूरात ने फिक्र नहीं ली तो हमें उस घर से ताउन नहीं मिलेगा। आप देखें हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने फिक्र में अपने घर वालों को शरीक कर लिए। अम्मी जान खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, सबसे बड़ा ताउन उनको हुजूर को अपने घर वालों से मिला। उसने जान भी लगाई, माल भी उसने लगाया। बहुत मालदार औरत थी, सोने की ईंटें चांदी की ईंटें लेकर निकाह में आई थी, ऐसी मालदार औरत थी, लेकिन उसने सारा हुजूर पर लगा दिया। तो औरत को अपने दिफा में शरीक कराएंगे। देखो भाई, ये बात हम घर में चलाना चाहते हैं तो घर में तो घर वाली की चलती है। घर वाली को क्या कहते हैं, घर वाली, वो घर की वाली है। हमारी भी वाली वही होती है, हाँ हमारी वाली भी वही होती है। अच्छा तुम सब इज्तिमा में आए, अगर वो तुम्हारे लिए रुकावट बनती और कोई मसले खड़े कर देती, तुम आ सकते थे? अल्लाह बोलो भाई, अच्छा आ गए हो, वो कोई वहाँ मसला खड़ा करे तो तुम यहाँ टिक सकते हो? अरे बोलो भाई, आ भी नहीं सकते और आए हुए टिक भी नहीं सकते, फौरन जाना पड़ेगा। ऐसा वो सहारा है। ये उसको अपने फिक्रों में शरीक अगर नहीं किया हमने तो हमारी बात घर में नहीं चलेगी। हमारे बुजुर्ग हजरत इनाम हसन साहब की बात हमारे बुजुर्ग सुनाते हैं, वो ये सुनाते हैं कि हजरत फरमाते थे कि मर्द का दीन दरवाजे की चौखट तक और औरत का दीन घर के अंदर तक। वो समझ गए घर के अंदर बात चली गई। और यूँ फरमाते थे कि एक मर्द का बनना, एक मर्द का बनना, और एक मर्द का बन जाना, एक नस्ल और एक खानदान का बन जाना, पूरा खानदान बन जाता। अगर हम ये चाहते कि इन देहातों में ये दीनी फिक्र बने, दीनी फिजा बने, दीनी माहौल बने, तो उन देहातों की औरतों को अपनी मस्जिद की, बल्कि सब जगह पर, देहातों से मुतालिक ये नहीं है, अपने मोहल्ले की मस्जिद हो या जमात के हम जाएं, कहीं भी जाएं, वहाँ की जैसे मर्दों की हम फिक्र करते हैं, मस्तूरात के कान पर भी अल्लाह रसूल की बात हो जो उसकी हमें फिक्र करनी पड़ेगी। बेहतरीन वो मददगार, अगर वो कोई चीज करना चाहे तो करने के रास्ते निकाल देती है, और वो कोई करना ना चाहे तो करके रास्ते खुले हुए भी बंद कर देती है। हाँ, उसको अल्लाह ने ये मलका दिया है, ये अल्लाह ने उसको मलका दिया है कि वो उसका एक कायम हो जाता है। आप देखो हमारे अपने घरों में देखो। अच्छा बताओ, हमारे घरों में लड़के लड़की का रिश्ता पैगाम है और हम चाहते हो कि हमको करना है रिश्ता, वो ना चाहती हो तो कर लेंगे नहीं कर लेंगे? अरे बोलो भाई, हम चाहते हैं मगर वो नहीं चाहती, तो रिश्ता होगा या नहीं होगा? अरे जरा जोर से बोलो, क्यों नहीं होगा? आपको घर के वाली हो, क्यों नहीं होगा? अच्छा वो चाहती है कि हो जाए और हम चाहते हैं ना हो, तो जी हो जाएगा। ये सब इसकी इसकी फिक्र घरों में चलती है, इसलिए हम इसको मामूली न समझे। हमारे हजरत जो कहते हैं ना, जो जमात किसी मस्जिद में पहुंचे साल भर, तो जैसे मर्दों की फिक्र करते हैं ऐसे मस्तूरात की फिक्र, उसमें बात बस क्या वो होगी जहाँ मोहल्लों में तालीम के हल्के हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ कायम एक कायम हो चुका है। जिन मोहल्लों में तालीम के हल्के नहीं है, वहाँ अगर हमारी जमातों में ऐसे मंजू हुए साथी हैं जो बात कर सकते हैं, मशवरे से मस्तूरात में जरूर बात करें, ताकि वहाँ के मर्दों में भी फिक्र हमारी चल पड़े, वहाँ की मस्तूरात में भी चल पड़े। और दूसरी बात,
جہاں ہم بات نہیں کر سکے وہاں کوشش یہ کریں کہ ان کے مردوں سے جب گھر میں بات کرنے کے لیے جائیں تو اتنی زور سے بات کریں کہ ہماری آواز مستورات تک پہنچ جائے. 6 نمبر کے دائرے میں بات کریں اور اتنے زور سے کریں کہ وہ عورتیں سن سکیں. بہت زیادہ چلانا نہیں ہے, مگر عورتوں کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ جب تم بات کرو گے نا, وہ کچن میں بھی ہوگی, کان انشاءاللہ تمہارے پاس ہوں گے اس کے. وہ کان یہاں چھوڑ کر جاتی, کہاں چھوڑ کر جائے گی؟ وہ سنتی ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے, اور اگر اس کو آواز نہیں پہنچی تو بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. عورت کی فطرت میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی متکلم بات کر کے باہر نکلیں گے وہ فوراً گھر کے مردوں کو پوچھے کہ کون تھے اور کیوں آئے تھے, تو وہ سب مل کر کہیں گے مسجد سے آئے تھے اور یہ لوگ تھے اور یہ کہہ رہے تھے, تو تمہاری بات چل پڑے گی. اس لیے مستورات کو اپنے فکروں میں ضرور شریک کریں. وہ اگر معاون بن گئی نا تو سب ایک طرف اور وہ ایک طرف, وہ بھاری ہو جائے. اور یہ فرعون جو ہے, فرعون اس کو اس کے جوتش نے کہا تھا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے, وہ بچہ تمہارے ملک کو ختم کرے گا. تو اس نے پوچھا اچھا وہ کون سے خاندان میں سے ہوگا؟ فلاں خاندان میں سے. اس نے آرڈر کیا اس خاندان میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں سب کو ختم کرو. تو ہزاروں بچے اس نے ختم کر دیے. لیکن اللہ کو اس بچے کو پیدا کر رہا تھا تو اللہ پاک نے کس کو استعمال کیا, ذریعہ بنایا, عورت کو بنایا. ان کی امی نے ان کو صندوق میں ڈال دیا, وہ تیرتے تیرتے محل میں پہنچ گئے. جب محل میں پہنچا فرعون بیٹھا ہوا تھا, ان کے ساتھ ان کی گھر والی بیٹھی ہوئی تھی اس کے ساتھ. تو صندوق کو کھولا گیا تو بچہ نکلا. تو اس کا پہلا جملہ یہ تھا یہ وہی بچہ ہے جس کے لیے مجھے جوتش نے کہا ہے, یہ وہی بچہ ہے. اب گھر والی بیچ میں آ گیا, گھر والی کہنے لگی نو 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 یہ وہ بچہ نہیں ہے. اچھا بھائی یہ بچہ نہیں, اس کی دلیل کیا ہے؟ اس نے دلیل دی کہ وہ جو خاندان رہتا ہے وہ تو اس طرف رہتا ہے اور یہ صندوق آیا ہے وہ اس طرف سے آیا ہے, الٹی طرف سے آیا ہے. تو اس کو ایسی دلیل دینے لگی کہ وہ ہار گیا اور یہ جیت گئی. اور وہ بچے کو گھر میں نہیں رکھا, کھوڑا لے لیا, گود بن لیا, متبنا بنایا, لے پھلک. اب جس بچے کو اس کے لیے ہزاروں مار دیا, اور جب بیوی بیچ میں آ گئی تو مار تو نہیں سکا, گود لینا پڑا اس کو. کیا لینا پڑا بولو؟ اور سارا راجپاٹ کی طاقت ایک طرف اور بیوی کی طاقت. ارے بولو بھائی, سارے راجپاٹ کی, اور وہ بھی فرعون جیسا راجا, اس کی ساری راجپاٹ کی طاقت ایک طرف اور بیوی کی طاقت. ارے بولو بھائی, بیوی کی طاقت ایک طرف, وہ نہیں مار سکا. اور وہ ان کے گھر میں 40 سال رہے. اس کے گھر میں کتنے سال رہے؟ عورت یہ چیز ہوگی. تھوڑے بڑے ہو گئے تو تھوڑے بڑے ہوئے تو کھیلتے کھیلتے داڑھی کھینچنے لگے, ہاتھ میں انگلی ڈالی, ناک میں انگلی ڈالی. دیکھیے ابھی سے مارتا ہے مجھے. ہاں کتابوں میں لکھا ہے اس نے فوراً بھڑک گیا کہ دیکھا ابھی سے مارتا ہے. تو پھر بیوی بیچ میں آ گئی اور بیوی کہنے لگی کل مانڈے ہو, چھوکرے تو ابا کے ساتھ ایسے ہی کھیلتے ہیں اور کیسے کھیلیں گے, کہنا یہ الگ ٹائپ کا کھیلتا ہے. ہاں یہ تو یوں کرتا ہے, یوں کرتا ہے, یہ نہ سمجھے میں کرتا ہے. مجھے کیسے خبر پڑے کہ نہ سمجھے میں کرتا ہے؟ امتحان. اچھا اچھا تم امتحان لے لو. ایک پلیٹ میں اس نے ہیرے رکھے اور دوسرے میں انگارے رکھے, کہ دیکھتے ہیں کہ اس یہ بدھی سے کرتا ہے بغیر بدھی کے کرتا ہے. تو جب اس کے سامنے رکھے گئے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے, تو موسیٰ علیہ السلام لینے گئے وہ چمکتے ہوئے ہیرے, لیکن جبرائیل علیہ السلام آئے اور ہاتھ رکھ دیا انگاروں پر اور انہوں نے لے کر منہ میں رکھ دیا, تو زبان جل گئی. تو رکنا تھا نہیں ان کی زبان میں تیز کی وجہ سے. تو وہ سمجھ گیا کہ ہاں یہ سمجھتا نہیں اس لیے انگارے اٹھا گیا. یہ سب اللہ کا غیبی نظام تھا. کیسے کس کا نظام؟ لیکن ذہن بنایا کس نے؟ بیوی نے. تو بیوی ایسا ذہن بنانے کا کام کرتی ہے, اچھے اچھوں کی وہاں چلتی نہیں ہے. اس لیے ضرور مستورات پر ہم محنت کی شکل سوچیں, اس کو چکے نہیں. اس لیے جماعتوں میں بھی ہم کی جائیں اور تعلیم کے ہلکے ہوں تو وہاں جوڑنے کی فکر کی بات کریں نہ ہو, اور ہماری جماعت میں وقت لگائے ہوئے منجے ہوئے سلجھے ہوئے ساتھیوں تو مستورات میں ضرور بات کریں اجتماعی. جتنا ہم مردوں پر محنت کریں ایسے عورتوں پر بھی کریں. پہلے زمانے میں جماعتیں یہ کرتی تھی, اور جب اجتماعی نہ کر سکے جیسے انہوں نے کہا نہیں کر سکے تو کوئی بات نہیں. ہم جب ان کے وہاں گھر میں بات کرنے جائیں تو ذرا آواز کو بلند کر لیں, زور سے کر لیں, اور اس کو بات پہنچے ایسی شکل بنائیں. سمجھ گئے بات؟ تدبیر کرنے کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ادھر حسن تدبیر سے زیادہ کوئی عقل مندی نہیں. کس سے زیادہ بولو؟
उसने तदबीर से ज्यादा, तदबीर बहुत बड़ी चीज होती है। एक मरतबा हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह एक जगह तशरीफ ले गए, उनके साथ बड़े मुफ्ती साहब थे, मुफ्ती महमूद साहब, दोनों साथ में एक मस्जिद में गए। तो जुमा का दिन था, तो वो एक मौलवी साहब ने मौलाना इलियास साहब के हामी लोग थे, उन्होंने ऐलान किया हजरत मौलाना आए हैं, बयान होगा। तो जो मुखालिफ थे वो खड़े होकर कहने लगे बिल्कुल भी नहीं होगा। उन्होंने खड़े होकर कहा जरूर होगा, वो कहने लगे बिल्कुल भी नहीं होगा। अब तमाशा हो गया मस्जिद में, जुमा में तमाशा। मौलाना ने देखा कि सब तमाशा हो रहा है, मौलाना आए और सीधी जुमा की नमाज सुन्नतें पढ़ना शुरू की। अब लोग इंतजार में क्या होगा, होगा या होगा या, अब नमाज पढ़ना शुरू की। अब नमाज सुन्नतें पढ़ी, इतने में जमात का टाइम हो गया, नमाज खड़ी हो गई, बयान हुआ नहीं। नमाज के बाद फिर तमाशा खड़ा, क्या होगा क्या होगा। मौलाना इलियास साहब ने मुफ्ती महमूद साहब का हाथ पकड़ लिया और कहा चलो, अब मजमा देख रहा है क्या होगा। तो मुफ्ती साहब से कहने लगे मौलाना कि मुफ्ती साहब ये कोई बयान करने आए हैं। मुफ्ती ने कहा ना भाई ना, बयान करने नहीं आए। फिर कहने लगे अगर ये लोग बयान करने की हमको रजा देते, हम उनको ये कहते ये कहते ये कहते ये कहते ये कहते, आधा बयान सुना दिया। फिर पूछा दोहराने बाद मुफ्ती साहब हम ये कोई बयान करने आए, ना बयान कर, अगर ये लोग रजा देते तो हम इनको ये कहते ये कहते ये कहते ये कहते। तो अपने बयान का नाम लिए बगैर ने तबलीग का नाम लिए बगैर काम हो जाता हो तो कोई वादा है भाई? अल्लाह बोलो तो खरे भाई, कोई वादा है? अपना तो काम होना चाहिए। वो मराठी जबान में काम ठेव, काम निकलना चाहिए, जैसे भी निकले तो तदबीर करनी चाहिए। तो गए इंशाल्लाह। चले बाबू, इसी जोन में दूसरे राउंड की भी जमात चली। अच्छा, दूसरा राउंड की जमात जो इसमें चली वो जरा है। जी भाई, महिला में कहाँ के बाद छोड़ो देखो, जमाती छोड़ो देखो। इंशाल्लाह आपने किसी जोन पर काम किया, आपने कितनी जगह कायम किया? वही 8 इबादत खाने और 2 देहात, 2 मकान और 5 जगह 8 जगह कायम, वही कितने देहात में कवर किए जो उनको थे, वही इस मस्जिद में। ये जमातें जो काम किया उससे आगे आपने क्या काम किया? ओहो माशाल्लाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, माशाल्लाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये कैसे हो गया? अच्छा, एहतिकाफ भी वही किया। अच्छा माशाल्लाह, ये कैसे हुआ? हाँ। अच्छा अच्छा, तो देखा भाई, ये करामत देखी, वो चिट्ठा था आदमी के भाई निकल जाओ, और ये उसकी तरफ आगे बढ़ते गए तो घर में दाखिल होता गया उन्हीं को। अच्छा जैसा फिरौन ने समूसा अच्छा अच्छा, वाह भाई वाह। फिर आगे देखा भाई, गांव में एक ही आदमी था, गांव में मस्जिद में इख्तियार न करो, वो एक ही आदमी था। अगर इनकी जगह और कोई कर्जदारी सुनाने वाला हो मेरे जैसा कच्चा, हमको निकाल आए थे, दाखिल भी नहीं होने दिया, ऐसा कह सकते थे भाई? क्या इसको हवा बना देते, इश्यू बना देते। हम गए थे, वो तो फारसी चिल्लाने लगे,
क्या हुआ? फिर वहाँ गश्त किया मुलाकातें की और मौलाना कह नहीं पहुंचे थे तो लक्ष्मणी आए थे। वो जब आए तो उनको देख के थोड़ा चौंक गए। उनके मस्जिद में थे जाके उनको जो है मुसाफा किया और गले लगा लिए माशाल्लाह। और जो है उनसे बातचीत करके फिर उनके रूम के अंदर चले गए। बोले किसने आपको कहने को कहा? बोला सच्ची साहब से बात किया उन्होंने कहने को बोला। जब गश्त का वक्त आया तो सलाम वगैरह हमने पढ़ी उनके साथ जो सलाम वगैरह पढ़ के फिर जो है ऐलान किया तो मैंने बोला ऐलान का किसने बोला आपको? मैंने कहा सच्ची साहब से बात हो गई। फिर जो है पूरा गश्त वाला अरे अबू उधर हुस्ने तदबीर से ज्यादा कोई ट्रस्टी साहब से तो बात हुई थी कि हम अंदर जाए काम करें और काम में क्या क्या है वो थोड़ी खबर थी क्या क्या है सभी है। चलो और मेरे वाला ना खाना पकाया और हम जो इलाका में जाते थे वहाँ खाना पका के मतलब मेरे कमरे के अंदर खाना पहुँचा देते थे और ऐसा नहीं कि बचा हुआ खाना हम पहले उनको पहुँचा देते फिर हम खाते थे। माशाल्लाह वाह भाई तो वाह। उससे मशवरा जो है थोड़ा असर लेती थी। तो किसी जगह पर गए जहाँ हमको ठहराने नहीं दिया वहाँ सब जगह हम कहता है और कैंप करें। ये एक शक्ल होती है कि भाई कोई तदबीर करना शरीक करने के लिए कि भाई हर गीली तबलीग सूखी नहीं जो बाकी अगर हर जगह ये शुरू करेंगे तो लोग ये इसका इंतजार करेंगे कि भाई जमात वाले आएंगे तो ये देंगे वो देंगे। लेकिन इस जगह पर एक जरा खोखला करने के लिए थोड़े हथौड़े बजाने पड़ते हैं ना इस तरह से या खुदा हुस्न तदबीर से ये मौलाना सईद खान साहब फरमाते थे आदमी एहसान का गुलाम होगा अलमर अब्दुल एहसान एहसान कर दो तो फिर वो खामोश हो जाता है। फिर जो फरमाते थे पहले निकलेगा फिर निकलेगा ऐसा होता है। दस्तरखान थोड़ा बस्ती होता है वो ताउन उससे ताउन निकलता है। माशाल्लाह अच्छा रहा। तो वो गाँव में आप हजरात ने मुलाकातें की तो गाँव वाले क्या कह रहे थे फिर? वो फिर तारीख में जैसे निकले कि भरूच के अंदर वो इज्तिमा पर गए हुए थे। बोला कि ऐसे धीरे धीरे महीने निकल मसला जमा किया। अच्छा माशाल्लाह ऐसे साथी भी थे वो साथी भी थे और ये साथी भी थे। कभी ट्रक के अंदर उनको उससे मैं मुलाकात की तो मालूम पड़ा कि ये ट्रक के अंदर है लेकिन वो जगह थोड़े मजबूत कहने लगा। हाँ, लेकिन उसको आपने कमजोर कर दिया अल्लाह ने कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर और क्या हुआ? और जैसे जो घर के अंदर जो ले गए थे उनको जो निकाल के फिर घर के अंदर ले गए उस गाँव के अंदर गए उस गाँव के अंदर दूर से लारी को देखकर जो है वो चिल्लाने लगे कि निकल जाओ आप वापस फिर से आ गए। बार बार आएंगे उससे जो है थोड़ा ये जो है आप ऐसा हो आपके जो जमात से आप निकल तो आपकी बाहर से इमदाद होती है इसलिए आप निकलते हो। तो उसको जो इस तरह से थोड़ा समझाएगा कि जो उनको ठहराए थे उससे बात करके वो इनके घर ले गए। अच्छा फिर आपको भी घर ले गए? जी पूरा दिन हमने उनको बोला कि आप घर मत ले जाओ फिर आपको हमारे जाने के बाद आपको दिक्कत होगी ये वगैरह है। तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं आप हमारे घर आएगा। मतलब हमको टेंट किसी जगह लगा दे दो तो बोला नहीं टेंट नहीं लगेगा हम हमारे घर पर ही ठहरे। फिर हमने घर पर गए जाके मशवरा किया और तालीम शुरू कर दी। तो करीब की मशवरा के वो बाहर ठहरकर जो है तालीम को सुनने लगे। फिर वहाँ पर जो है खुली बस्ती की जो है मुलाकात की और फिर धीरे धीरे जो बुजुर्ग वहाँ पर थे मौलाना से मुलाकात की मौलाना से रब्ता किया। मौलाना ये बोला कि आप किसी जगह घर घर जाकर जो है मुलाकात ना करें ऐसे ही आप चले जाए घर पर जाकर मुलाकात की। लेकिन अभी फिर दूसरे राउंड में जब हम इलाज के अंदर गए छात्रों को कवर करने के लिए तो फिर उस मौलाना से भी जुम्मा का दिन था मौलाना से जो है हिफाजत करके फिर मौलाना को भी दावत दी और मौलाना को भी बोला कि जुम्मा के अंदर जरा बयान कर देना चाहिए रखवाड़ी के अंदर फिर हुआ था वो भाई फिर बात नहीं हुई। आपको कौन है? देखो माशाल्लाह पहली राउंड की जमात एक सदा तक पहुंची दूसरी उससे आगे अल्लाह का बंदा। ये होता है दरजन व अलल्लाहि फरजा कि आदमी तकबीर करे अल्लाह को शादी ले आता है। हाँ। दरगाह पर आए वो मस्जिद में नमाज पढ़े बगैर चले गए। दूसरा दिन हमारा तो गश्त से लेकर पूरा गश्त हमारे साथ थी। माशाल्लाह वाह पूरा गश्त हमारे साथ
जो खिदमत देने वाले थे दो तीन साथी को मसीहा जमात में बैठे थे उनको जो मजार पे काम करते थे उनको साथ में रखकर मसीहा जमात में खड़े अपन उनको पूछा कि मैं वो मसीहा जमात अपनी सूर्य में बोले कि हाँ कि साथी हम बैठे मसीहा जमात माशाल्लाह, अल्लाह बात। इस सफर में आपने कितनी मुलाकातें की? 332 इस जोन में कुल वाले मर्द थे? हर घर के अंदर बोलना 10 घर थे 5 घर थे उसमें आधे जो है 5 घर थे कहीं ना कहीं काम से हो गए थे कोई बात, लेकिन आप दस किया कितने वाले मर्द थे इस जोन में? एक गांव के में बोलना पूरे जोन में, पूरे जोन की बात, ये सर्वे हो जाना चाहिए कि जोन में कितने वाले मर्द हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारी इतनों से मुलाकात हुई, इतने लोगों की मुलाकात बाकी है। अच्छा, आपने मस्तूरात में कहीं प्रोग्राम किए? एक जगह पर ये 10 गाँव को आपको ठहरा दिए थे, वहाँ क्यों नहीं? कोशिश की मौलाना, लेकिन वो अक्सर मसूरा के कपास की वजह से भी कपास किसाने का टाइम था तो वहाँ पर जाते थे। अगर शाम पे आती थी तो किसी न किसी तरह दो जगह पर बातचीत किया कि मसूरा से बात हो जाए, लेकिन उन्होंने फिर चले कोई बात, कोशिश करें। और मुलाकातों में जाते थे तो उसमें उनके पास पहुंचे, उसकी शक्ल बना देते, वो होती थी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। जैसे घर में जाते थे तो मगरिब के बाद मगरिब में आते थे तो उस तरह से बात करते थे। अच्छा, आपके साथ कितने लोगों ने नमाज पढ़ी? हमारे साथ लगभग 20-30 जन ने नमाज पढ़ी। टेंट लगा देते, वो लोग नमाज पढ़ने नहीं आते थे? और अजान देते थे, फिर नमाज के लिए हम दावत देने भी जाते कि भाई नमाज का वक्त है, चलो आ जाओ, तो आ जाते थे। कहीं अजान नमाज शुरू हुई आपके जरिए से? अजान नमाज शुरू नहीं, लेकिन एक बच्चे को जो है अजान सुना सिखाई, बोला कि इस तरह से नमाज अजान देते रहना वक्त हो तो ठीक है देता रहो। अच्छा, कितने लोगों को सही करवाया? कलमा 10-15 साथी को कलमा तय कराई, फिर अभी 10-15 चले भाई, कितना पैदल चले? हम चले 256 कैसे? वो तो 150 चले थे आपका? हमारे इतना चले मिलाते 256 ज्यादा से ज्यादा आप लोग कितने चले? 14 किलोमीटर। वही जो चले थे। जी जी वही। और कोई ऐसे मुसलमान जिनसे मुद्दत के बाद मुलाकात हुई हो ऐसे, या पहली बार मुलाकात हुई हो ऐसे? जो इबादत खाने वहाँ जो की बात थी मौजूदा जमात का वहाँ एक 50 साल से शाखा थी, 10 के बाद से उन्होंने 50 साल के बाद दीन की बात को सुना। वो जो साथ में थे उन्होंने बताया कि इन्होंने पहली मरतबा दीन की बात सुनी। अगली जमातों से छूट जाते थे, उसकी कोई वजह? यानी वो सुनते ही नहीं थे मौलाना। अच्छा, सुनते ही नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह। और जिन हजरात से आपकी मुलाकात हुई उन्होंने क्या तासुर पेश किया? आपके जाने से वो खुश हुए, नाराज हुए, कैसा लगा, क्या कहा? अगर इसी तरह अगर हम अपने चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह धीरे धीरे सब खत्म होगा। अल्लाह करेगा। बहुत अच्छी, भाई, बड़ा अच्छा काम हुआ। सब साथी आपके खुश रहे? जी हाँ आपके रोजाना गश्त होता था? जी रोजाना करते हैं। और सुबह शाम के रोजाना होता है। और नमाज जमात के साथ सब और तहज्जुद वगैरह सब नवाफिल वगैरह सब चलो। अच्छा भाई, तीसरी जमात मक्कर प्रोग्राम में जो चली है, आपकी जमात कहाँ की थी? कितने साल? 9। नौवीं का? आप कौन सा कॉल है? और जमात कहाँ की थी? वो कितना फासला है दोनों में? 15 किलोमीटर है। मकरपुरा और नागरवाड़ा 15 किलोमीटर। बहुत अच्छी बात है। आपको मेहनत के लिए आपकी जमात में चलने वाले कितने? अच्छा भाई, आपकी जमात जो चली वहाँ सब जगह बच्चों के पढ़ने का निज़ाम है? सब जगह मकतब है? 17 की 17 जगह पर पढ़ाने आता, मतलब पढ़ने का निज़ाम है? कोई ऐसा देहात तो नहीं कि जहाँ बच्चों के पढ़ने का निज़ाम ना होता हो? कोई ऐसी जगह तो नहीं छोड़ी? आपको कितनी बस्तियाँ दी गई? आपकी जमात में चलने वाले कितने? और आपको कितनी
علاقے میں گئے تھے کام کے لیے 19 گاؤں میں مسجد مدرسہ تھا اور جماعت ریگولر جاتی تھی سال بھر جاتی ہے 2 جگہ وہاں بھی آپ نے قیام کیا اچھا اور باقی سب جگہ جماعت دی جاتی ہے 3 جگہ پر آپ نے مسجد میں قیام کیا باقی جگہ پر ایک عبادت خانہ 2 مسجد باقی پوری سب جگہ پر کہاں قیام کیا آپ نے کتنی جگہ پر کیا پر کتنی جگہ قیام کوئی جگہ کتنی 19 میں سے 2 جگہ پر آپ نے ٹینٹ لگایا قیام 14 گاؤں میں کی اس میں 3 جگہ مسجد 2 جگہ ٹینٹ 5 ہو گئے باقی 9 یہ کا مطلب عبادت خانہ بنانا یا گھر میں کیا تھا ہاں وہی پوچھا مسجد کیا بنانا یہ 14 جگہ پر مدرسہ تھا صرف کہاں گئے یہ دونوں کی جماعتوں کی برکت سے سب جگہ مکتب شروع ہو گئے دیے بن گئے سب اللہ جل تو کتنے مسلمان وہاں اس دور میں ہیں کچھ اندازہ کیا نہیں پچھلے تو یہ کتنے ہیں اس میں سے کتنے ہوئے گی آپ نے اندازہ کیا کہ اس دور میں بالغ مردوں کی تعداد کتنی ہے نہیں یہ ہونا چاہیے ہر زون میں کل کتنے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم نے اس طرح سے ملاقات کی اور اتنے باقی رہ گئے آپ نے کل 560 کی ملاقات کی یہ مجموعہ کہاں کا تھا مگر پورا کوئی گاؤں ہے دیہات ہے یہ مکہ بھی مجموعہ تھا مکہ بھی مجموعہ تھا ماشاء اللہ اللہ جزائے خیر دے آپ نے 17 جگہ پر ملاقات کی کیسا رہا ان کے مسجدوں میں وہ مجموعہ آ رہا ہے اچھا سب جگہ پر اذان نماز زندہ ہے کتنی جگہ پر 8 جگہ وہ ہے جہاں اذان نماز نہیں ہے آپ نے وہاں نماز کی اس سے پہلے نماز کی محنت تھوڑی کی تھی تاکہ وہ بستی کے لوگ آپ کے ساتھ نماز پڑھا کریں کتنے لوگوں نے آپ کے ساتھ نئے لوگوں نے نماز پڑھی جو آپ کی تو یہاں جو جماعت ہوتی ہے نا وہ ایسا سمجھے طوفانی جماعت ہوتی ہے دھمال مچا دیتی ہے اور آپ یہ کہتے ہو 20-25 آدمی نے نماز پڑھی تو سمجھ نہیں آتی آپ کی جماعت تو مردے کو بھی نکل رہا ہے اگر میں مردہ ہوتا ہے اس کو بھی نکال رہا ہے تو آپ کو 20 آدمی نے نماز پڑھی تو مجھے ذرا آپ گणت میں بھول تو نہیں پڑی تمہاری اچھا دیکھو یہ کہہ رہا ہے زیادہ ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جماعت میں بڑا اچھا کام کرتے ہیں زوردار کام کرتے ہیں اکثر ٹرینڈ کے ساتھ جاتی ہے اور پیدل چلتی ہے اور دیہات میں اور کرتے ہیں آپ کی جماعتیں بڑی زوردار کام کرتی ہیں لیکن زوردار آدمی ایسی کام کی صلاح دیں تو اچھے رہتے تو گणت میں بھول پڑ گئی ہے نا ہاں گणت میں بھول پڑی ہے زیادہ ملاقات ہوگی اللہ جزائے خیر دے تو اس میں ایسا کوئی مسلمان ملا ہو جن سے پہلی بار ملاقات ہوئی اس سے کتنے لوگوں سے ان سے پہلی بار ملاقات وہ کیا کہہ رہے تھے ملاقات آپ کو جانے کی دعوت دے رہے تھے وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے گاؤں سے ان کے پاس جانے کی دعوت دیتے تھے پھر آپ نے کیا نیت کی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے اچھی نیت کی آپ نے کہ ہم سال بھر اس بستی میں جاتے ہیں ہمارے حالات یہی کہتے ہیں بھائی کہ بھائی یہ دونوں میں ہم جاتے ہیں پھر سال میں ایک بار جانے کا موقع ملتا ہے پھر آئندہ سال جائیں گے اگر ہمارا اتنا بڑا مجمع سال بھر اگر ان دیہاتوں میں جاتا رہے تو ان دیہات کوئی دیہات بنجر نہ رہے ایک بھی دیہات بنجر نہ رہے لیکن یہ ہماری کمزوری کی بات ہے کہ ہم نہیں جا پائے آپ کے کل زون کتنے ہیں 8 زون ہے اب 8 زون میں 16 جماعت چلنی چاہیے اب
یہ 6 جماعتیں چلی ہیں. 8 زون میں کتنی جماعت, یہ دوسرے 10 زون ایسے ہی چھوڑ گئے. وہ کیوں چھوڑ گئے؟ میں اور آپ نہیں گئے. اگر ہم اور آپ جاتے تو جس طرح یہ 6 زونوں کی کارروائی ہے, ایسے 16 کے 16 زونوں میں کچھ نہ کچھ رمق آ جاتی. جیسے ہم اس طرح زونوں میں نہیں گئے, سال بھر ہم 3 دن بھی نہیں گئے, اور یہ بیچارہ مسلمان اسی طرح دنیا سے جا رہا ہے. ہم اللہ سے ڈرے ہیں, ہم اللہ کے وہاں کیا جواب. یہ میرے کمی کی بات ہے. اگر میرے اندر ذرا بھی اندر وہ ہے, غلط ہے, تو میرا دل رونا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشہور جملہ ہے. ہوا یہ تھا ان کے زمانے میں ایک مجمع تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم زکات نہیں دیں گے, مانعین زکات, زکات نہیں دیں گے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ منہ کھول گیا اور فرمایا اينقص الدين وانا حي, کیا دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ میری موجودگی میں دین میں کمی آ جائے. تو ہمارے سارا ہی چوپٹ پڑا ہے, اور ہمارے اندر کوئی بے چینی نہ آئے. یہ بے دینی کو دیکھ کر آدمی میں بے چینی آ جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کان یتململ کتململ السبیل, جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے ایسے ان حالت کو دیکھ کر وہ تڑپ جاتا ہے. اگر ہمارے اندر ذرا بھی دکھ ہے, درد ہے, ہمارا دل روئے گا, دل ملا جائے گا. اور اگر کوئی فرق نہیں پڑتا پھر وہ دل ہے یا پتھر ہے. اگر میں گیا ہوتا تو جس طرح ان 6 زونوں میں محنت ہوئی, ایسے 16 زون ہمارے سارے کور ہو جاتے. اور سال بھر اگر ہم 3 دن گئے ہوتے تو یہ سارا, اور سوچنا یہ کہ ہمیں وہاں ملتا کیا ہے, کئی قصبہ پرس لوگوں میں اللہ ملتا. مولانا الیاس فاروق کے موجودات میں ہیں, غریبوں کو اپنی محنت کا میدان بناؤ, اس میں تمہیں اللہ ملے گا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ارے بولو بھائی, ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ جہاں سے لینا پڑے گا. انا عند منکسرۃ القلوب, میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوں. یہ ہماری بہت بڑی کمی ہے. اس لیے ہم سب نیت کریں کہ سب سے پہلے ہم اللہ سے 2 رکعت پڑھ کر معافی مانگیں گے کہ اللہ اتنے سالوں سے یہ بات میں سن رہا ہوں لیکن میں نہیں کر رہا ہوں, اللہ اس پر تو مجھے معاف کر دے. 2 رکعت توبہ پڑھو گے. کون کون 2 رکعت توبہ کہ میں قصوروار ہوں؟ کون قصوروار ہے بولو؟ میں. اور آئندہ ایسا قصور میں دوبارہ نہیں کروں گا. اور انشاءاللہ آئندہ سال اس طرح زونوں میں جاؤں گا جس طرح ہمارے نبی چلے ہیں. کل میں بھی پیدل چلوں گا. چلو گے انشاءاللہ؟ آئندہ سال جاؤ گے؟ کون کون نیت کرتا ہے آئندہ سال زونوں میں جانے کی؟ اور سال بھر ان دیہاتوں کو کور کرنے کے لیے ہم ٹینٹ بنائیں گے, مسجد وائز ٹینٹ بنائیں گے, اور 3 دن ان دیہاتوں میں جائیں گے. جاؤ گے؟ کون کون مسجد, کون کون سارے نیت کرتے ہیں جائیں گے؟ اللہ جی. کئی مسترد کا پروگرام ہوا کتنی جگہ؟ واہ 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 واہ, ماشاء اللہ. وہ مسترد کا کیا سوچا آپ نے پروگرام کیا تھا؟ تم تو خالی سال میں ایک بار بات کر کے چلے جاتے ہو. اچھا بھائی, آپ لوگوں کے پاس اس کا کیا حل ہے؟ یہ جو شکایت تھی کہ بھائی آپ سال میں ایک بار آپ اور بات کر کے چلے جاتے ہو, آپ لوگوں کے پاس اس کا کیا حل ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں مسجدوں میں جائے ہی نہیں, ایسے ہی کمروں میں 3 دن جائے, یہی کہہ رہے ہو؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہی جائے 3 دن. اور کی جماعت اگر پوری نہ بنے تو کم سے کم 4-5 گھنٹے کے لیے 2-3 جوڑے جا کے وہاں پر کام کریں ہفتے میں. وہ کون کرے گا؟ اپنے ساتھی. کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے, مستورات کی جماعت کے تقاضے رکھتے لیکن بدلتی نہیں ہے, سجاتی نہیں ہے, تو کم سے کم 6 گھنٹے 7 یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہاں مردوں میں بات کرنے کے لیے جائیں اس دن وہاں مستورات 2-3 جوڑے مشورے سے جائیں, اور وہ مردوں میں بات بھی ہو اور مستورات سے اختلاف کریں. یہ ہمارے بڑوں نے ہمیں رہبری کی ہے کہ ایسے دیہاتوں میں جب ہم جائیں تو کوشش کریں کہ وہاں بات جب ہو ہم اپنے 2-3 جوڑے مشورے سے لے کر جائیں. وہ مستورات ان کے ساتھ اندر بیٹھ جائیں, اختلاف کریں, تو مستورات اندر ماشاءاللہ ان پر محنت کی شکل بناتے ہیں. ایسا پورے سال بھر میں کسی بستی والے نے کیا نہیں. آپ نے کیا, آپ نے کیا 3 4 5 6 7 8. ایسا تو نہیں کہ ایک ہی مسجد کے 2-3 دن ہاتھ اٹھاتے ہو. ہاں بھائی, ذرا ہاتھ اٹھایا دوبارہ اٹھاؤ. اب آپ کو
कौन सी बस्ती के हो भाई? मधुरम। आप? मीना और बीना, चलो एक ही हो गए। बीना, चलो एक ही हो गए जी। डबोई, नागरवाड़ा, चलो नागरवाड़ा डबल हुआ। नागरवाड़ा, एक 3 जगह हुई, एक बीना, एक नागरवाड़ा और एक डबोई। बीना और बीना, अच्छा भाई 4 हो गए। 4 हो गए। चलो, देहरादून इतने ज्यादा देहात है। अच्छा, आप लोगों ने ये बात पहले रहबरी में सुनी है हजरत से कि भाई ऐसे देहातों में तो आप 3 दिन में मेहनत का मैदान बनाओ और वहाँ अपने 15 दिन में एक दफा बात कर लो। ये आपने सुनी है बात? किससे किससे सुनी, जरा तो उठाओ। जहाँ तालीम हल्के नहीं है ऐसे मोहल्लों में अपने मंजूर साथियों के जरिए से 15 दिन में एक दफा बात हो जाए। ये बात आप लोगों ने सुनी है? अरे भाई सुनी है? अच्छा, किसने किसने सुनी, जरा तो उठाओ। माशाल्लाह। अच्छा, ये सुना है कि जब बात करो तो मसूरात के 2-3 जोड़े मशवरे से लेकर जाओ, ये बात सुनी है? फिर सिर्फ 3-4 आदमियों ने किया, बाकियों ने नहीं किया। ऐसा रहता है। इतना बड़ा मजमा दुनिया से ऐसे ही जा रहा है। हमारी थोड़ी मेहनत के जरिए से अल्लाह को अच्छी जिंदगी दे दे, अच्छा जीना मरना दे दे, कितनी बड़ी कमाई की बात है। एक जमात की कागजारी हम लोग सुन रहे थे, उन्होंने सुना है कि हम एक देहात में गए, उस देहात में एक बच्ची घर में गए तो मर्द थे नहीं, एक छोटी सी बच्ची थी, तो भाई और हमने चॉकलेट वॉकलेट दिए, कलमा सिखा दिया, कलमा सिखाया और उसको कहा घर में कौन है? हमारी दादी है। अच्छा, तुम दादी अम्मा को सिखाओ कलमा? हाँ जी सिखाओ। तो वो तय करके चली गई। हम लोग वापस हो रहे थे तो गाँव में मैं देखा तो बच्ची, वहाँ कुछ लोग थे, तो वो बच्ची हमको मिलने आ गई। हम ठहरे तो बच्ची आई, हाँ बेटा क्या है? तो वो दादी को कलमा सिखाया था। कहाँ सिखाया था, मगर उनका इंतकाल हो गया। वो क्या कहने लगी, तो वो जो तुमने सिखाया था ना वो पढ़ते पढ़ते चली गई। उन्होंने ये सुना है, वो पढ़ते पढ़ते चली गई। आपको नहीं पता कितनों की ईमान इस्लाम संभलने का जरिया बन जाता है। तो हमारे हजरात जो कहते हैं उसको हम अपने मशवरों में लें, उसकी तरतीब दें। हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि हम इन देहातों को, जो हमारे देहात हैं, जो हमारे 16 जोन, कितने देहात होंगे, उन 16 के 16 जोनों में हम अपने दो अमल हमारे पास है, एक 3 दिन का अमल और एक दूसरा गश्त। ये 3 दिन का अमल और दूसरा गश्त हम आबाद मस्जिदों में करना छोड़ दें, ऐसे देहातों को मेहनत का मैदान बनाएं कि इन देहातों में हमें 3 दिन जाना है और इन देहातों में हमें दूसरे गश्त के लिए जाना है। अगर हमारा इतना बड़ा मजमा, देखो इन जमातों से जब इतने देहात कवर हुए, ये चंद लोग हैं और चंद लोग इतने देहात कवर कर सकते हैं। इतना बड़ा मजमा अगर मेहनत पर पड़ जाए तो हमारे जिले का क्या कोई देहात बंजर रह सकता है? लेकिन वो बंजर इसलिए है कि हमने उसको मेहनत का मैदान नहीं बनाया। हमारे हजरात फरमाते हैं कि 3 दिन के जरिए से और कश के जरिए से इसको कवर करो और उन देहातों में जहाँ मर्दों पर आपकी मेहनतें मुस्कुराते हो जाए और महीने में एक मरतबा या 15 दिन में अपनी मस्जिद के जमात साथियों के जरिए से वहाँ बात करवा लो और जिस दिन बात हो उस दिन अपने मशवरे से 2-3 मस्तूरात अपने मेहरमों के साथ वहाँ आपके साथ जाए। मर्द मर्दों से इख्तिलाफ करेंगे, मस्तूरात जब बात होगी उनके साथ बैठ जाएंगे, तो वो अंदर से उन पर मेहनत करेगी, उनसे दोस्ती लगाएगी। अल्लाह ने चाहा बहुत आनंद फानन एक काम की शक्ल बन जाएगी। 5-10 साल तक ये कर लोगे भाई? कौन कौन नियत करते हैं करेंगे? 2 गुजारिशें हैं, एक तो दूसरा गश्त आबाद मस्जिदों में छोड़ दो आप, ये इन देहात में आप दूसरे गश्त में जाओ और दूसरे 3 दिन अपनी आबाद मस्जिदों में न जाओ, हर मस्जिद वाले टेंट बनाओ और टेंट बनाकर इन देहातों को अपनी मेहनत का मैदान बनाओ। इन कस्बों लोगों में तुम्हें अल्लाह मिलेगा और ये कस्बों लोग अल्लाह से जुड़ जाएंगे। तो जाओगे इन देहातों में 3 दिन ले, कौन कौन नियत करता है ले जाऊंगा, और दूसरा 3 दिन भी हम जाएंगे और टेंट बनाएंगे, मस्जिद वाइज टेंट बनाओ। कैसे बनाओगे? कौन सी मस्जिद वाले टेंट बनाएंगे? सब बनाओगे? आपके साथी सब पूछ रहे कितना पैदल चले? ज्यादा से ज्यादा माशाअल्लाह, वाह चले। कुछ सीखा आप लोगों ने? कुछ दुआ सीखी हो, कुछ आयतें सीखी हो? हाँ, रहबरी हो जाता।
माशाल्लाह तुम्हारी तबीयत सबकी खुश रही माशाल्लाह। इस जमात में कोई ऐसा साथी हो जो पहली बार गया हो, ऐसा भी है जोन में? आप पहली मरतबा गए, आपका पहले कितना वक्त लगा? 4 चिल्ले लगे? तो खड़े हो जाओ। आप जो पहले 4 चिल्लों में गए हो और इस चिल्ले में क्या फर्क है? यहाँ आ जाओ जरा। जोरदार जैकेट वैकेट पहन कर आई थी, सर ज्यादा ठंडी है। आप बैठ जाओ। हाँ भाई, तुम्हारे 4 चिल्ले पहले लगे उसमें और इसमें। जी पहले मौलाना मस्जिदों की जमातें होती थी, पैदल चलना, इसके अंदर टेंट वगैरह बांधना, हर काम को अपने हाथ से करना, हर जगह पे पानी नहीं होता था, किसी जगह के ऊपर हर जगह पे खाना वगैरह बनाना, तो ये सब चीजें खाना पकाना सीख गए। क्या क्या आपको क्या फील क्या हुआ, क्या महसूस हुआ? तो बहुत अच्छा हुआ मेरा। मस्जिदों की जो जमातें चलती थी और इसके अंदर फीलिंग जो होती है वो अच्छी होती है, मतलब किस चीज? अंदर से जो फीलिंग बनती है वो अच्छी होती है। वो अच्छी को हम क्या समझे, अच्छी क्या होती है? यानी जो ईमानी ताल्लुकात जो अल्लाह से जोड़ना है, हाँ, तस्बीहात में भी उसमें ध्यान लगता है और कुरान पढ़ने के अंदर, नमाजों के अंदर उससे ध्यान ज्यादा बनता है। ये बात हुई ना, ये बात हुई माशाल्लाह कि आदमी का ताल्लुक मा अल्लाह। ये देहातों की जमात हर जगह जाएगी, धक धक होता रहता है, पता नहीं क्या होगा, बस्ती वाले क्या करेंगे, और वहाँ कोई है ही नहीं तो कौन नजर आएगा? तो हर जगह अल्लाह ही अल्लाह होता है। जमातों ने कर्जदारी सुनाई, अल्लाह के साथ ताल्लुक, नजर अल्लाह पर गई, दुआओं में जान पड़ी, रोना आया, ये कैफियत बनती है और ये मतलूब है। अल्लाह पाक शुक्र। अच्छा बैठो। अच्छा भाई, दूसरे जोन की जमात, दभोई जोन की जमात आ जाओ भाई, आ जाओ। ये तीसरे जोन की, 3 ही जोन में जमात चली है, तीसरे जोन की। हाँ भाई, आपकी जमात में कितने साथी थे? हमारी जमात में लगा दो। हमारी जमात में 10 साथी थे। अच्छा, 10 साथियों में छापने वाले कितने थे? 2 साथी थे। और आपको मेहनत के लिए कौन सा जोन दिया था? अच्छा, कितने देहात से इसको आपको कवर करना था? 20 देहात आपको मेहनत के लिए दिए थे। इन 20 देहातों में से मस्जिद मदरसे वाले देहात कितने थे? 4 देहातों में नहीं थे, बाकी हर जगह 16 जगह थे। कि माशाल्लाह जोन की जमातों की बरकत से बने होंगे। उसमें मस्जिदें कितनी जगह? कोई बात नहीं, जहाँ होती है ऐसे कितने मस्जिद छोटी छोटी मस्जिद और इबादत खाने, मतलब मदरसे वगैरह? अच्छा, उसी में मदरसा, आप लोगों ने उसी में मेहनत करके मेहनत की। और उसके अलावा कितने देहातों को कवर किया वहाँ रहकर? तकरीबन 6 देहात हमारे छूट गए, उसको करके हमने कवर। उसके अलावा उसके अलावा भी उसमें 4 देहात हमने जो किए। तो गए 10 देहात आपने कवर भी किया। ये 20 में 10 30, उसमें खयाल कितनी जगह किया? 14 जगह। 14 जगह। कितना कितना ठहरे? 2 दिन। तो 14 तो 28। चलो, बाकी दिन कहाँ लगे? दूसरे दिन हमारे यहाँ 2 दिन दबोई में लगे, फिर 2 दिन वहाँ शहर में लगे, 2 तीन दिन जमात जोड़ने के लिए हमारे। ऐसा क्यों हुआ? 2 दिन दबोई में, 2 दिन शहर में? तो जमात जोड़ने की इतना जोरदार काम हो रहा है और तुम सब ये सब दिन दबोई में लगा दोगे, देहात कवर नहीं हो जाता है? कुछ जगह 4 दिन लगाए, कुछ जगह 3 दिन लगाए। केवल एक टोकरी थी, वहाँ पर 3 दिन लगाए। जो वहाँ देखिए 2 घर के गाँव थे, तो वहाँ पर इस जोन में कुल कितने मुसलमान हैं? गिनती की थी भाई, ये पॉइंट जरा नोट करो, ये जोनों में कितने मुसलमानों की तादाद है। आप लोग इसको जरा सा, ताकि पता चले कितने हैं और इसमें से इतनों की हमारी मुलाकातें हुई है ना। आपकी कितनों से मुलाकातें हुई? हमारे हर गाँव में 10-12 घर थे हर गाँव में। हाँ, तो तकरीबन हर
कितनी मुलाकातें हुई, व्यापार किया और कितना हुआ वो भी नहीं गिना हाँ भाई। अच्छा अच्छा, ये 20 देहातों में ऐसे कितने देहात होंगे जहाँ तुमने 100% मुलाकात की? वो मुझे नहीं पता, 1 2 3 यूं बता दो जरा, क्योंकि मुझे थोड़ी पता आसोदरा कहाँ है। 5 दूसरे गांव में न होने की वजह नहीं, जो बाहर थे उनको छोड़ो, जो थे और नहीं हुई यहाँ पे। अच्छा कोई बात नहीं, आपने कोशिश की 100% से मिल गया, कोई बात नहीं, हम तो मेहनती के तो मुकल्लफ है, हमारा तो क्या कर सकते हैं, बस तदबीर करने की तदबीर। 6 नथीमा समझे बात, 6 नथीमा बात નથી થઈ શકતી તો ગોઠવીને ગમે તેમ वो है नहीं हिकमत अपने कहते हैं वो हिकमत करने के लिए वापरने की, छोड़ने के लिए नहीं वापरना। अपने ये कहते हैं ना हिकमत छोड़ दो ना, अरे हिकमत तो करवा माटे हो, छोड़ो तो मत छोड़ दो, શું કરવાનું છોડવાની हिकमत હોય છોડ દો તો છૂટી ગયો, કરવું છે સીધી લીટીથી નથી થતું, કઈ લીટીથી થશે એ લીટી દોરવાની, हिकमत करने के लिए छोड़ने के लिए। मसलन ये भाई से मुलाकात करनी है, मैं नहीं कर सकता हूँ, अब किससे करवा सकता हूँ, कैसे कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने सिया टायर वाले की कर्जदारी नहीं सुना है, वो हिकमत ये कैसे कर सकते हैं, तदबीर छोड़ दो, उसको क्या लेना देना, करना है। अब करने के लिए क्या कर सकते हैं वो करना, करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो हिकमत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना वो करने के लिए, वो दो इला सबील रब्बिका, बुलाओ अल्लाह की तरफ हिकमत से, वो बुलाने के लिए। हम कहते हैं हिकमत छोड़ दो ना, तो हिकमत छोड़ने के लिए तो करने के लिए, तो आपने ये सोचना है कि तदबीर करने की पूरी अल्लाह तो दे। वहाँ मसरात में भी कई प्रोग्राम हुए, 5 जगह मसरात माशाअल्लाह, दूसरी जगह न होने की वजह नहीं, दूसरी जगह दोस्तों में दिल लगता है मतलब वो जिसके लिए बात नहीं हो रहा तो मुलाकात नहीं आते ना, तो हम लोग इसकी बात करते हैं अंदर पूरा अच्छा मुझे तकलीफ होती है कि मसरात में आपसे दिल फटे हुए होते हैं, वो जमा नहीं होता। इसलिए मैंने आपको शुरू में भी कहा कि कोई घर में ठहराए तो घर में ठहरने के बजाय अपना टेंट डालकर ठहरो, तो तुम्हारे पास सब लोग आएंगे। किसी की प्राइवेट जगह पर जुड़ोगे तो जो लोग आपस में फटे हुए होंगे वो आपके पास आएंगे नहीं। मसरूरत में भी ऐसा होता है, मतलब वो हमारी मजबूरी है, करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। चलो अल्लाह जज़ाए खैर दे। जितने सबसे ज्यादा इबादत का है अपने बनोगे और अपने आदि से मतलब आए मदद करते हैं, यहाँ नहीं करते वहाँ पर मदद मौलाना वगैरह नमाज पढ़ा रहा होता है, 2-3 घर है वहाँ पर जो नमाज वगैरह नहीं होती। 4 जगह सुनाई, 16 जगहों में के अलावा उन 4 जगह पर कुछ अज़ान नमाज शुरू हुई नहीं, नमाज वगैरह नहीं हुआ। आपने कोशिश की थी वहाँ अज़ान किया, यहाँ पर बना दो मदरसा वगैरह, वो जो तस्वुर है ना मदरसा बना दो, वो आपके लोगों के यहाँ के कुछ लोगों ने सफेद हाथों में ये शक्ल बनाई, एक देहात बनाते हैं, तो अब सब जगह ये होता है कोई ऐसा हमको भी बना दो। अपने तो हुजूर अलैहिस्सलाम वाला टेंट डाल दिया न फर्श है न फर्श है, उसका रिवाज डाल दो। देखो हम अभी बैठे थे पिंडल के नीचे नहीं हो रखा, आसान तरतीब पर ये शुरू करो, 4 तंबू गाड़ दिए, प्लास्टिक बिछा दिए, तुम्हारी मस्जिद हम उस फिक्र में पड़ जाएंगे कि हम ये बना दे वो बना दे, तो फिर मुश्किल जरा हो जाए, आसान करके उनको बताओ। अब आइंदा अल्लाह करे कि जिसके में वो देहात आए तो कोई टेंट डालकर वहाँ नमाज शुरू हो जाए, उसकी शक्ल बनाओ। जब तुम टेंट डालकर इबादत करोगे तो उनको खुद ज़हन में आ जाएगा कि इस तरह से टेंट डालकर नमाज पढ़ सकते हैं। मीना में लोग जो है ना रोड पर ठहरे होते हैं, अरफात में मुज़दलिफा में, तो सेठ साहब को भी ठहरना आसान, और रोड पर ही ठहरते हैं, कंकरिया में ठहरते हैं, तो कोई नहीं पूछता कि ये कोई ठहरने की जगह है, भाई सारे लोग ठहर रहे हैं तुम भी ठहरो, तो ऐसे आप लोग ठहरोगे तो उनके लिए भी इस तरह करना आसान हो जाएगा। बराबर? चलो अल्लाह को देखो कितना पैदल चले, 100 ज्यादा से ज्यादा 17 माशा, कितने बजे चले थे? सुबह तकरीबन 8 बजे निकले थे, हाँ 1:30 बजे पहुंचे थे। कितना खर्चा हुआ? 2600 रुपए। आप यूं जिले में जाते हो कितना होता है? 4000। तो जो बचे उससे क्या करोगे?
पर हेड 1500 बचे। चलो अल्लाह तौफीक दे, सब साथी खुश रहे, कुछ सीखा आप लोगों ने? हाँ, ये जुमला अच्छा है, मशवरे से। आइंदा अगर हमारा मशवरे से किया तो मशवरे से जाएंगे। मतलब आदमी को ये हो जाता है कि भाई मैं यही करूं, मशवरे की चीज है, जिसको जहाँ भेजे इस तरह से जाना चाहिए। मशवरे से सो गए तो भी नफे में, और बगैर मशवरे के शहीद हो गए तो भी खतरे में। मशवरे से होना चाहिए सब। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला बदर के मौके पर मशवरे से घर रुके थे। किससे? मशवरे से रुक गए तो माल गनीमत मिला था, क्योंकि मशवरे से रुके थे। बगैर मशवरे के कोई चीज नहीं कर सकती, उसमें अल्लाह की मदद नहीं। समझ गए बात? और मशवरा मनवाने का नाम नहीं, जबरदस्ती करने का, इसरार करने का, हमारे दिल में जो आता है वही करने का, ये मशवरा नहीं है। कुरान अल्लाह फरमाते हैं बहुत सारी चीजों में तुमको भलाई नजर आती है, हालांकि उसमें नहीं है, भलाई दूसरी चीज में है। और बहुत सारी चीजों में तुमको बुराई नजर आती है, हालांकि उसमें नहीं है, बुराई और किसमें है। इसलिए मशवरे में खैर होती है, अल्लाह उसमें खैर डाल देते हैं। बदर के कैदी पकड़े गए, बदर में कैदी पकड़े गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा इन कैदियों के क्या करना चाहिए? तो एक मजमे ने कहा कि इनसे फिदिया लेकर इनको छुट्टी कर दो, रिहा कर दो। बादों ने कहा हमारे फारूक एक को भी छुट्टी नहीं करने की, बहुत हैरान किया है, एक की भी छुट्टी बहुत हैरान किया है। जिसके जो रिश्तेदार उसको दे दो और वो उसको कत्ल कर डाले, खत्म करे, बात गई ना बात गई, खत्म। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा करके कहा ये जो पहली राय आई थी फिदिया लेकर छोड़ने की, उस पर फैसला किया, ये मशवरे से किया। जब मशवरे से तय हो गया तो अल्लाह ने पैगाम भेजा कि हमको तो वही फैसला अच्छा लग रहा था जो हमारे फारूक, लेकिन तुमने मशवरे से किया तो खैर अल्लाह ने उस पर डाल दिया। अगर ये मशवरे से ना होता तो हमारा आजाद करीब था कि लोगों को पकड़ लेता। अल्लाह मशवरे से इस तरह खैर डाल देते। तो हमें कुछ सोचता है ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, और मशवरे से हुआ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना है, तो फिर अल्लाह उस पर खड़ा। अब मशवरे करने वाले अमानतदार होने चाहिए, अल मुस्तशार व मुतमन, अमानतदार, उनमें नफ्स परस्ती ना हो। अगर वो नफ्स परस्ती करेंगे तो इस सब का वबाल उनके खाते में जाएगा। इसलिए अल्लाह से बहुत डरना चाहिए कि हमारी नफ्सानियत या हमारा नफ्स उसमें काम न कर जाए। चलो अल्लाह को फिर बैठ जाए। इस राउंड की दूसरी जमात है, वो थी पादरा जोन की आदि अब्दुल अजीज। ये इस राउंड की दूसरे राउंड, चलो पादरा जोन, ये हमारी कमी की बात। ये पहले राउंड की चली, अब उस राउंड में उस जगह पर दूसरी जमात नहीं चल पाई। आपकी जमात कहाँ की थी? अंदर चंदे की जमात। अब तो लोग मस्जिदों से जमात बनाते हैं। हमारे जोन 8 थे, इस साल हमने एक बढ़ाया, शहर का जोन। हमारे पास देहात कम है, तो हम सोच रहे थे कैसे कवर करें। तो दाहोद हल्का हमारा है, उसके शहर में गैर मानूस मस्जिद है, उसका एक जोन बना है। गोधरा शहर का एक जोन बना है, गोधरा शहर का, यूं करके इस साल एक जोन बना है। और अल्लाह फजल है, जब से जोन शुरू हुए एक भी जमात कम नहीं हुई। 6 थे तो 6 जमात जाती थी, 7 है 7 जाती थी, 14। इस साल 9 बनाई तो एक जमात बढ़ाने की बनकर आई। हम मस्जिदों के हवाले कर रहे थे, तनकीद में हल्के वाले अपने जिम्मे लेते हैं, हल्के वाले मस्जिदों को तरजीह देते हैं। तो मस्जिदें अपने अपनी मस्जिद से जमात बना कर जाती हैं, और यहाँ पूरा हल्का मिलकर 6 साथी 7 साथी की बात है। और 16 आपकी जमातें बननी चाहिए, खाली 6 बनी है, ये हम नहीं गए, इसकी वजह से हम सब अल्लाह से माफी मांगे। अल्लाह मेरी कमी नहीं है, हम लोगों की कमी कहते हैं, लोग नहीं करते। भाई मैं नहीं करता हूँ, मैं कब गया हूँ? मैं लोगों की तरफ से देखता हूँ, अपनी तरफ नहीं देखता हूँ। इसलिए माफी मांगोगे अल्लाह से। चले, आपकी जमात में कितने 4 महीने वाले? 8 सामने 8 साल है ना। अच्छा, आपको मेहनत के लिए कितने देहात दिए गए? 23 गाँव। उसमें मस्जिद मदरसे वाले कितने थे? तो कुछ का मुझे क्या पता चलेगा भाई? मैंने आपसे जो पूछा, इन 23 में से मस्जिद मदरसे वाले कितने थे? 8, 2, 3, 8। अब बात वाले हो गई। अब जो 23 में 8 में आप उस मदरसे में रुके नहीं,
टेंट 14 जगह टेंट बन रहा हमने ताकि स्कूल के होते थे और जो मतलब इबादत खाने थे उसमें नहीं उसके सामने टेंट बन गए। अच्छा, इसकी क्या वजह थी? वो उसके अंदर सब मिक्स वस्ती थी तो कोई मना कर रहा था। अच्छा, तो आपने टेंट सब जगह, आपने कुल 14 जगह पर टेंट लगाया हाँ 14 ताकि स्कूल के ओटे वगैरह पर टेंट। आपने इस दौर में कितने मुसलमानों से मुलाकात की? तकरीबन एक गांव के अंदर सब वो सब एक जैसे मतलब 10 मकान 12 मकान जितने भी तो उसमें 90% मतलब मुलाकात हो गई। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, 90% मुलाकात हुई, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह बहुत मुबारक फरमाए, कबूल करे। ये 10% क्यों छूट जाते हैं? वो जॉब वाले होते हैं रात को नाइट में जाते हैं फिर सुबह लेकिन आप मुझे यकीन है कि आपने कोशिश तो जरूर की होगी कि 10% से भी मुलाकात हो जाए। कोशिश तो की थी मगर हो नहीं सकी, ऐसा ही हुआ। चले कोई बात नहीं, अल्लाह इसका आपको अजर देगा। ये सब जगह पर जहाँ अजान मस्जिदें नहीं थी वहाँ आप लोगों के साथ कैंट में कोई लोगों ने नमाजें पढ़ी? 2 बार हमने खाने के साथ जोड़ किया था। एक मरतबा 100 आदमी ने हमारे साथ नमाज पढ़ी। माशाल्लाह 100 आदमियों ने, वाह भाई 100 आदमी जोड़े थे नमाज 45 आदमी ने पढ़ी माशाल्लाह। और दूसरी जगह भी हमने जोड़ किया तो वहाँ पर 22-25 आदमी ने हमारे साथ नमाज माशाल्लाह, पढ़ी। 2 जगह पर सही। बाकी टेंट के अंदर 3-3 4-4 सारी कुल आपके साथ कितनों ने नमाज पढ़ी? तकरीबन सब पूरे जिले के अंदर हमारे साथ 150 माशाल्लाह नमाज पढ़ी। माशाल्लाह, और ये 20 की आवाज है, 20 का नमाज पढ़ी। अच्छा, ये इसमें ऐसे कि जिसको बहुत जमाने बाद मुलाकात हुई हो ऐसे भी कोई मिले? एक जगह जो हम गए वहाँ पर मतलब पहले तो जमात घुसने नहीं देते थे। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह साथी गए मुलाकात की भाई हमको इफ्तार की मगरिब के बाद मुलाकात करेंगे कहा कि भाई हमको इफ्तार की नमाज पढ़नी तो वहाँ इफ्तार की नमाज हमको पढ़ने कहा कि ठीक है आ जाओ घर में। वहाँ पर नमाज पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों के लिए दुआ की तो उनके दिल में कुछ बात आई तो कहा कि हमको कुछ बात समझाओ। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बात हुई तो कहा कि रुक जाओ तो फिर रुक के वो जो महल्ले के अंदर तो मस्तूरात थी उनको बुलाई तो फिर शादी ने कहा कि भाई उनको रुपए के साथ 12-13 मस्तूरात थी और ये सिर्फ 5 मकान थे अपने तो 5 मकान से मतलब 7 या 8 पर वहाँ बैठ के पानी 1 घंटा बात हुई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हुए फिर कहा कि भाई हमको फजाइल अमल चाहिए तो फिर दूसरे दिन फजाइल अमल उनको भेजी फिर दूसरे दिन में आधा पौना घंटा उनसे बात हुई फिर कहा कि हर महीने आप यहाँ आते रहे। फिर आपने क्या किया? इंशाल्लाह ले जाओगे कि नहीं? हमारे वहाँ मस्तूरात को जोड़ने की जो बात होती है ना वो असर से पहले होती है। असर से पहले, असर के बाद मस्तूरात की कोई इज्तिमाई प्रोग्राम नहीं होता। असर बाद, मगरिब बाद, इशा बाद जितने हमारे प्रोग्राम होते हैं वो असर से पहले होते हैं। लेकिन ये चूंकि गामड़े में गए थे, गरबे बात हो गई, 5 मकान थे, तो ये एक इत्तेफाक की चीज है। समझे बात आप? कहीं ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, अब हो गया हो। बाकी हम कोशिश इसकी करें कि अंधेरे में मुस्तरात को इधर से उधर नहीं ले जाना होता, तो उजाले में हम उनके करके पूरा करके उनको अपने वहाँ भेज देते हैं। लेकिन ये एक इत्तेफाक की चीज हो गई, मुलाकात में गए और नमाज पढ़नी पड़ी और वहाँ जमा हो गई 2-4 घर की मुस्कुरात थी और हो गया। और अगर ऐसा कभी हो गया कर लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन करना नहीं है, उसको अमल नहीं बनाना। समझ गए बात? अल्लाह तो कबूल फरमाए। आप लोग कितना चले पैदल? 112 इज्तिमाई और 45 इंफिराद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सब साथी खुश रहे। ज्यादा से ज्यादा कितना चले? 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर। कोई ऐसे मुसलमान मिले जिनसे पहली बार मुलाकात हुई? ऐसा नहीं है। इन सब जगह पर बच्चों के पढ़ने का निजाम था? पढ़ने का निजाम था? बच्चे मतलब आते हैं घर पे पढ़ाने आते हैं, घर पे पढ़ाने आते हैं। पढ़ाने? हाँ सब जगह नहीं, 10 जगह आते हैं। अच्छा, मुस्कुरात का प्रोग्राम कितनी जगह हुआ? 5 जगह मुस्कुरात में बात। बाकी जगह न होने की वजह? कहीं 1 मकान 2 मकान। आप उनका बात पहुंचा देते थे? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मर्दों ने और मुस्कुरात ने क्या कहा आप लोगों को, आप लोग उनके पास गए तो? अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो गए, कहा कि बस ये काम आप अंदर पहुंचते रहना और दावत देते थे। बोला कि यहाँ पर सभी ने ये बात कही, अगली जमात ने यही सुनाया क्या? तो साल में एक बार आते हो, सुनाकर चले जाते हो। आपको भी ऐसा कहा कि आप आते रहना? जी, ऐसा क्यों कहा? आप तो जाते ही रहते हो। असल में ऐसा कि पहले जो मानुस नहीं थे, धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता मानुस होते गए।
के जाते हो फिर भी ऐसा कहते हैं कि आते रहना समझाने तुम्हारी करता नहीं हाँ, ये कह रहे हैं अगर हम रास्ते जाते हैं तो ऐसा थोड़ी बोलते हो, इसका मतलब कि हमारे जाने में कमजोरी है। अल्लाह ने माफ फरमाया। अगर ये ईमान वाले इसी तरह दुनिया से चले गए तो हम अल्लाह के वफा करें। एक जमात में कारोबारी सुनाई कि हम मुलाकातों में गए, केरलियन से मुलाकात, अहमदाबाद में सुनाइए कारोबारी गुज़िश्ता दिनों में, तो केरलियन से मुलाकात हुई तो जॉन की जमात चलते चलते उसको कहा भाई ये कहाँ रहते हो, मैं भला है बट वो तो पूरा घर मुस्लिमों का है, घर ईमान वालों का है, हाँ उसी में रहता है, लेकिन कितनी बदक में ईमान वाला हो। अच्छा कौन कौन रहते थे, उन्होंने कहा अब्बा के साथ में रहता था। फिर अब्बा के साथ रहता था का क्या मतलब, तो उनका इंतकाल हो गया, तो फिर हम सब कॉलोनी वालों ने जाकर उसको साथ जला दिया। ये मुलाकातों के न करने के नतीजे हैं, हम उनके पास नहीं कर सकते। ऐसे पता नहीं कितने देहात वालों की हालात ऐसा है। अल्लाह ने हमको मेहनत का मौका दिया है, पता नहीं जिंदगी कब साथ छोड़ देगी हमें नहीं पता। देखो गुज़िश्ता साल आपका इज्तिमा हुआ था, तब से लेकर आज तक कितने लोगों की वफात हो गई होगी, हमें नहीं पता कि आइंदा साल का हमें इज्तिमा देखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिसको जो काम करने का मौका मिले वो कर रहा हूँ। हज़रत शेख ने दो बातें लिखी है बड़ी अजीब गरीब। एक बात लिखी, अपने को मुर्दों में शुमार करो, हो सकता है इस साल के मुर्दों में मेरा नाम भी आ चुका है, मेरा नाम इस साल के मुर्दों में आ चुका है, मुझे नहीं पता है, मैं अपने आप को जिंदों में समझ रहा हूँ। हज़रत शेख ने लिखा ये एहसास के साथ जियो कि हो सकता है इस साल के मुर्दों में मेरा नाम आ चुका हो, मुझे इसी साल मर जाना है, तो मैं जो कर सकता हूँ कर लूँ, उसमें कमी न करूँ। जिस आदमी को पता चल जाए इस साल मुझे मर जाना है तो आदमी सोचती करेगा। दूसरा हज़रत शेख ने जुमला लिखा कि जो काम करने का मौका मिले उसको आखिरी समझ कर, हर नमाज को आखिरी समझ कर पढ़ो, कि हो सकता है आइंदा नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, तो ये साल हमको मेहनत का आखिरी मिला है, आइंदा साल नहीं मिलेगा। अगर ये पता चल जाए तो हम ऐसा ही समझ करते हैं। अल्लाह हमें भी खैर का जरिया बना दे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूरात ने कारगुजारी सुनी, देखो ये आप थोड़ी सी मेहनत हुई, इतनी देहातों में जाना हुआ, कितनी अच्छी शक्ल बन गई। अगर साल भर हमारा एक पूरा मजमू अगर हरकत में आ जाए और थोड़ी सी मेहनत कर ले और अपने आप को थोड़ा सा थका दे, अल्लाह उसको कितना देगा, अल्लाह से करीब हो जाओगे। किताबों में कि अल्लाह का कलमा दुनिया में जिंदा हो जाए, उसके लिए कोई चलता फिरता है, उसके जिस्म पर जो गर्द गुबार लगती है, अल्लाह जहन्नम की आग को क्या धुएं को आराम कर देते हैं, तो फिर उसके अलावा की थकन, उसके अलावा का और ज्यादा थकना, उस पर अल्लाह क्या कुछ देंगे। इसलिए एक तो नियत ये करो कि साल हमारी दोनों की जमातें नहीं बनी, हम अल्लाह से माफी मांगे। अगर पूरी जमातें बन गई सारे जोन कवर हो जाते, वो हम नहीं गए इसलिए नहीं बनी, तो इंशाअल्लाह वो हम तौबा करते हैं और आइंदा साल हम खुद बेखुद अपने जात पे जाऊंगा जोन में, ऐसी नियत करते हो। इस मंजिल में कौन कौन आइंदा साल जोन में जाने की नियत करता है। उसके अलावा आप हजरात की अगर तबीयत चले, सालाना चले का वक्त हो, तो आप ऐसी जमात बनाओ और अपने जिम्मेदारों से कहो कि अगर हजरात मशवरा करोगे तो हम ऐसे जोन में पैदल चलने को तैयार है, क्योंकि हजरात ने कहा है कि अगर कोई जमात ऐसी हो और जिले वालों की राय बनती हो कि इसको हम अपने जिले में चलाएं, तो हजरात इसकी इजाजत देते हैं। हजरात इसकी, तो अगर आप हजरात इसकी हिम्मत करो कि इंशाल्लाह ये अभी जोन में चली है, हम इंशाल्लाह अपना सालाना वक्त में भी हम इस तरह चलेंगे और हजरात को हम पर्चा लिखेंगे बस मशवरे से। कैसे बोलो, आप जिले के जिम्मेदारों के सामने रखो, जिले के जिम्मेदार सूबे वालों के सामने रख देंगे, अगर हजरात ने मुनासिब समझा तो आपको मंजूर कर लेंगे, तो हम साल भर चलते रहेंगे। वरना कम से कम दर्जे में हम साल भर के लिए तो उन देहातों में जरूर जाएंगे। मैंने शुरू में कहा मौलाना ऐसा फरमा देते, गरीबों को मेहनत की मैदान बनाओ, गरीबों में तुम्हें अल्लाह मिलेगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह मिल जाएगा, तो अल्लाह लोगे इंशाल्लाह। अल्लाह हदीस से खुद से मैं टूटे हुए दिलों के पास हूँ, ये सब टूटे दिले वाले लोग हैं। आबाद जगह पर सब लोग जाते हैं, भूखे को खिलाने पर जो फजीलत, हम पेट भरों के पास जाते हैं, भूखों के पास जाए, ये सब दीन के भूखे हैं। तो हम सब तय करें 3 दिन उन बस्तियों में जाना है, और जिस दिन जाए टेंट लेकर जाए और हर 100% मर्दों को भी कवर करें और वहाँ की मस्तूरात का भी फिक्र करें, वहाँ के बच्चों की भी फिक्र करें। और उसके अलावा महीने में एक मरतबा 3 दिन हमारी जमात गई, उसके अलावा अगर अल्लाह मौका दे वहाँ
तानुस कर लो, उनको इकराम कर लो, तो इस तरह से इंशाल्लाह हमारी मस्तूरात की उनसे दोस्ती हो जाएगी और मस्तूरात के जरिए से बात आसान हो जाएगी। उसके अलावा उन देहात वालों की गमी खुशी में भी शरीक। गमी, मैंने कहा आदमी एहसान का गुलाम होता है, कि जब एहसान करोगे उन पर तो इंशाल्लाह उससे अच्छा नतीजा मिलेगा। ये सब चीजों के साथ अपने 3 दिन और दूसरा कष्ट देहात में करो। 1 साल अगर जान तोड़ मेहनत हो गई ना, तो 1 साल में इंशाल्लाह पूरी इलाके की नक्शा ही बदल जाएगी। तो सब नियत करते हो इस साल हम अच्छी मेहनत कर लेंगे। अच्छा, कौन कौन नियत करता है कि हम दूसरा कष्ट और 3 दिन इन देहातों में जाएंगे। आबाद मस्जिदों को भूल जाओ, शहर में भी और अतराफ में भी। अब तो बाइक का, गाड़ियों का जमाना हो गया। ये बाइक और गाड़ियां अगर इन तकाजों पर काम नहीं आई तो कब काम आएगी? तो हम अपने से अपनी जानमाल इन बस्तियों में दीन को जिंदा करने के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है इंशाल्लाह। अब बस्ती वाइज बैठो, हल्के वाइज बैठो और हल्के खुश रहो। अभी हल्के वाइज बैठो और हल्के में फिर मस्जिद वाइज बैठो और अपने जिम्मे देहात रहने हैं कि हम इंशाल्लाह हम हमारी मस्जिद में हमारी ये साथी फला फला देहात की नियत करते हैं। साल भर उन देहातों में हम सलसल से जाते रहेंगे और 1 साल में मेहनत करके उन देहातों को हम आबाद कर देंगे। बात समझ में आ गई भाई? अब हल्के वाइज बैठना है, हल्के में मस्जिद वाइज बैठना है और हर मस्जिद वाले उसमें भाई बैठो। अभी 1-2 मिनट, अभी एक बात, और हर मस्जिद वाले टेंट लेकर जाना है। समझ गए बात? हर मस्जिद जी, हमारे पास बच्चे में इतनी बड़े लिए 40 अच्छा, दूसरा ये है कि गुज़िश्ता साल आप हजरात गए हो और कोई बस्तियां आप हजरात ने गुज़िश्ता आप गए थे, फिर साल भर उन देहातों में गए हो और साल भर मेहनत करके किसी गैर आबाद को आबाद किया हो। ऐसे कोई जोन वाले हैं, कोई मस्जिद वाले हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह फला जोन में साल भर सरसों से गए और उस बस्ती में ये काम हुआ। जो गुज़िश्ता साल आप हजरात ने जिम्मेदारी ली थी, साल भर गए हो और वहाँ कोई काम की शक्ल बनी हो, अजान नमाज शुरू हुई हो या वहाँ कोई अच्छा, जरा हाथ उठाओ। साल भर किसने किसने अपने जिम्मेदारी ली थी? जरा हाथ उठाओ, अच्छे से उठाओ, कोई बात नहीं, और उठाओ। अरे भाई और उठाओ अच्छे से। देखो इतने सालों ने ली थी मगर काम नहीं हो सका। इस साल भी ऐसा ही करेंगे। इस साल कौन कह रहा है कि इंशाल्लाह काम करेंगे? कौन कौन कह रहा है करोगे इंशाल्लाह? तो अभी बैठना है और बस्तियां लेनी। आप कौन से जोन में गए थे? पूरे जिले में 3 दिन की जमातें दी गई थी। 3 दिन की जमातें हम डालेंगे वहाँ पर। इनमें से किसी हल्के ने 3 दिन की जमातें डाली हो वहाँ पर? पूरे 3 दिन, 1 दिन डाले। कोई और? अपने कितने लेकिन साल भर में कोई काम नहीं हुआ। वहाँ से कुछ 3 दिन के साथी वसूल करके आए हो। तो अभी मैंने पूछा था, आपने तो बताया नहीं। अरे भाई हम वही तो पूछ रहे थे, तो आपने बताया क्यों नहीं? हमने क्या पूछा था? उर्दू समझ में नहीं आई, गुजराती में पूछो। जो आप अभी बता रहे हो वही तो मैंने पहले पूछा था। हमने ये माशाल्लाह साउंड माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा काम हुआ ये तो। अल्लाह बहुत मुबारक फरमाए, कबूल फरमाए। और किसी देहात वालों ने किया था, उसका क्या फायदा हुआ ये काम करने का? भाई हाँ खड़े रहो। हाँ क्या फायदा हुआ भाई? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। देखो ये साल भर मेहनत हुई, दोस्ती लगाई, गमी खुशी में शरीक हो गए, उस बस्ती के 3 साथी 4 महीने जा रहे हैं। हाँ भाई जोर से बोलो। हाँ क्यों? साथी थामा जी। हाँ माशाल्लाह। वहाँ मर्दों के जरिए बात हो रही है और साल भर में वहाँ हुआ क्या? नमाज शुरू हुई हो,
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात हुई, अल्लाह बहुत मुबारक दो। कोशिश करो सबसे पहले कुछ बस्ती में अजान नमाज शुरू हो जाए, हर बस्ती में सबसे बड़ा फरीदा अजान नमाज, ठीक है इंशाल्लाह। हाँ भाई, आप कौन से जोन में गए थे? आगे बढ़ेगी। आपको कितने देहाती है? मैं पूछ लेता हूँ, कितने देहात को दिए थे? उनको कयाम के साथ 50 दिया, कयाम वाले कितने? कयाम वाले 17, उसमें से कितनी जगह कितनी? कयाम वाले टोटल 19 मकान दिया थे, लेकिन उसमें 17 में कयाम। और उसमें मस्जिद मदरसे वाले कितने थे? भाई बैठो भाई, मदरसा वाले तो मस्जिद मदरसा देखो आपका 2 दिन का इज्तिमा है, हमारे एक काफिला बैठा है ना, बूढ़े लोग बैठे हैं, देखो इनमें भी पेशाब लगती है सब कुछ, इनका 20 दिन का इज्तिमा है, रोज बैठते हैं। आप एक दिन नहीं बैठोगे, इसलिए नियत करो काम पूरा होने से पहले एक भी आदमी बाहर नहीं जाए जी। हाँ आपको मस्जिद वाला एक, अच्छा, काफी टाइम लगेगा। और ये 3 जगह पे इबादत करने का 13 जगह कितने लोगों से मिला? हमारी 190 के करीब। इस बार आदिल पर कितने थे? नहीं, जरूर मालूम करें। वैसे मैं आपको कहूँ तो 190 कम होगा, लेकिन आपका हौसला न टूटे इसलिए मैंने कहा माशाअल्लाह। ये तो माशाअल्लाह ही है, लेकिन और उससे होते तो तबारकल्लाह भी हो जाता, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, है ना? कितने कुल हैं, उसमें से कितने हुए वो जरा बात समझे नहीं होगी बात। ये 100% तक हमें पहुंचना है। लोग हजारों की तादाद में करते हैं, हजारों की तादाद में। एक जमात तुर्की गई तो मस्जिदों में वहाँ क़याम नहीं, मस्जिदों में क़याम नहीं, तो वो जमात को देखकर रोजाना 100 मुलाकातें करते, गार्डनों में जाकर करते। कैसे मुलाकात करते थे? तुर्की जबान तो आती नहीं है, तो लिख लिया था अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वालेकुम भाई खैरियत से हैं, तबीयत आपकी ठीक है, ये तुर्की जबान में लिख लिया। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। देखो कलमे की निस्बत पर हमारी मुलाकात हुई है, आप भी ईमान वाले, हम भी ईमान वाले, ईमान वाला भाई पूरा रटा हुआ, वो पूरा हो तो बात भी पूरी। ऐसे 100 मुलाकातें मस्जिद में लोगों को लाते थे, तो एक चूल्हे में कितनी हुई? दोस्तों ऐसे मुलाकात करते, क्योंकि वो गार्डन में टोले के टोले होते हैं, तो हदफ बनाकर काम कर रहे हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप उन जोनों में सर्वे कितने मुसलमान हैं और कितनों की हुई, कितने रह गए? आपने इन 17 जगहों पर 100% मुलाकातें की थी? हुई कितनी जगह? अच्छा, और मस्तूरात में भी कोई काम हुआ कुछ? आपने कोशिश की थी? अच्छा, इसी जगह पे करने वाले कितने? 3 साढ़े 4 पावी में तो मस्तूरात में वो करें सारे ऐसा कोई नहीं था। उदयपुर की जगह, उदयपुर में तो कुछ है भाई, हमारी जमात में जो शादी थी उदयपुर में बुजुर्गाने दिन कहीं थे, उदयपुर में बुजुर्गाने दिन पता कहीं थे, तो मुझे रात कड़ी बैठा तो बुजुर्गाने दिन में बुजुर्गाने रात कर अंधारू कर पूरी जमात में एक ही मस्तूरात में बात करे, ऐसा नहीं किया जाएगा, अंधारू कर दिया तो क्या है? 1-2-20 में होते तो देहात में बात हो जाती, काम हो जाता है भाई। अब तो आप पूरे ग्रुप में बहुत सारे साथी वक्त लगाए हुए हैं। घरवाड़ी बहुत सुधरेली છે, મને જણાય છે એવું છે શું? ચાલો लाचो, बहुत अच्छी बात। पैदल कितना चले? टोटल 389 ओह माशाल्लाह, इज्तिमाई 157 माशाल्लाह, की राशि 232। ओह वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई। ज्यादा कितना चले? 27 अब माशाल्लाह। कब चले थे? सुबह 9 बजे निकले थे, हाँ, मगरिब से 10 मिनट पहले पास। यार अल्लाह को कैसा रहम आएगा, अल्लाह को रहम आएगा। 27 किलोमीटर सुबह से जमात के लिए मगरिब के वक्त में। खाना कहाँ खाया?
पहाड़ी से निकल रहे थे पहाड़ी जाने के लिए हाँ 50 के वकील साले हाँ पहाड़ी आते हाँ 2 जना पहाड़ी आते तो उन्होंने रास्ते में उनको देखा तो उन्होंने बोला कि मैं खाना भेजता हूँ अच्छा मतलब अल्लाह के वास्ते आया था, हमें मांगा नहीं था, नहीं हम सवाल नहीं किए, हम कहीं किसी से न दिल का सवाल न जबान का सवाल न दिल का सवाल, हमारा मालिक खुदा है, वही हमारा निजाम बनाएगा, मांगो उसी से जो दे खुशी से, कहे ना उसी से मांगना है। अल्लाह सब शादी तुम्हारे खुश रहे, एक अब्दुल्ला में नसीब है उसका दुख हुआ, बहुत अच्छा, इतना अच्छा कर चले, इतना अच्छा काम किया, इतना बड़ा कर लेते तो चलो अल्लाह जज़ाए खैर। कोई ऐसे मुसलमान मिले हो जिनसे पहली बार मुलाकात हुई? ऐसे। चलो, सब साथी खुश रहे, कितने साथी थे जवान? चलो जवान भी पूरी बना कर गए थे, 6 वरना 7 और सब कम्प्लीट था, ये भी थोड़ा कर लेते तो चलो अल्लाह अच्छा हल्के वाइज बैठो, हल्के में मस्जिद वाइज बैठो, एक भी साथी इस इंसान के बाहर आ जाए, हल्के वाइज बैठो, हल्के में मस्जिद वाइज बैठो और अपने देहात क्या करो,